When I was in 10th standard, you can say back in year 2003, I started earning. There were certain financial issues going around in my family, so being the eldest child in the family, it was my responsibility to shed off certain burdens of my parents. My first income was 2500 rupees for a 20 days tuition of computer classes. I got that money. I asked my dad, "Yeah, dad, I'm rich. Let's go out to buy these products which I needed." So he said, "Okay, fine. You have money. I don't mind. Let's go around." So he just wanted to give me a lesson. So he said, "Ki, okay, let's use your money." I bought certain products. जब बिलिंग हो रहा था उस प्रोडक्ट का, so the bill amount was 800 rupees. So I asked my dad, "Can you please hand over my money to me so that I can pass it on?" So when I counted those notes, I thought, "Oh, I'm just left with this much." I don't know, no, Dad, I don't want to buy. Let's go back home, because he wanted to teach how hard is to spend your own money. Yes. And we being kids, we ask our parents, like, 600 की चीज लेनी है, 700 की चीज लेनी है. So they even don't even think of spend, like, twice. सोचते भी नहीं है कि बच्चों पे खर्चा करना है, and they spend it. So that was my first lesson that my father gave me, that earning is hard, money is little, and still we spend on you. Hi, this is Indranil and welcome back to the channel The Spotlight Beyond Profession, India's first online business news channel. Today in our channel, we're having a podcast with Annie Bhatia. Annie Bhatia is a HR personnel. Now, HR means human resource, ये हम सब जानते हैं. But how much it is important to have the HR department for the startups and entrepreneur, we will try to understand more into it. और सिर्फ यही नहीं, एक HR डिपार्टमेंट एक स्टार्टअप के कंप्लायंस, इंटीग्रिटी और एक राइट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में कितना हेल्पफुल होता है और होना चाहिए, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. Before that, please subscribe our channel so that you can have all the updates from our end, and also visit our website www.tsbp.in. Through our website, you can pitch your business idea so that your business idea to be visible to the world and to a larger audience, so that you can have certain advisors as well from our platform to you. So please visit our website www.tsbp.in. So first of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our show, The Spotlight Beyond Profession. In this podcast, obviously you are under the spotlight, and we call it Beyond Profession because in this podcast we will try to understand more about your journey and about your mission and vision in coming years. And before I get into it, I have two disclaimers. Number one, that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will try speak in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask you anything and you don't want to answer or address, you just can say no. There is nothing like avoiding anything. Okay. Because we are completely uncensored, unscripted, and unfiltered. That's something great about it. So first of all, we just want to know the basic about you, that from where you started, where is your schooling and other things has been done, Sure. and how you entered into this HR profession. Sure. Thank you so much, first of all, the Spotlight team and Indranil, for getting in touch with me and, inviting me here. This seems something very, it attracts me a lot. This plants, this setup, it's really beautiful. It seems like you are going to come up with something very good gradually. Thank you. And yes, about me, I'm Annie Bhatia. I started a bit early, हर बच्चे की तरह नहीं, थोड़ा सा यूजुअली पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी. When I was in 10th standard, you can say back in year 2003, I started earning. There were certain financial issues going around in my family, so being the eldest child in the family, it was my responsibility to shed off certain burdens of my parents. So I took up charge. I started working. Like you can say, in 2003, I started taking tuitions for my education. So back in year 2003, I still remember there is an incident about it. I would like to bring it up.
I'm fond of buying the skincare products. Okay. So back in year 2003, when I started earning, my first income was 2,500 rupees for a 20 days tuition of computer classes. So I got that money. I asked my dad, "Yeah, dad, I'm rich. I have 2,500 in my hand, so I'm rich. Let's go out to buy these products which I needed." So he said, "Okay, fine. You have money. I don't mind. Let's go around." So he just wanted to give me a lesson. So he said, "Ki, okay, let's use your money." So when we went, I bought certain products. जब billing हो रहा था उस product का, so the bill amount was 800 rupees. So I asked my dad, "Can you please hand over my money to me so that I can pass it on?" So when I counted those notes, the old 500 notes, when I counted those notes, I said, "Oh, I'm just left with this much. I don't know, no, Dad, I don't want to buy. Let's go back home," because he wanted to teach how hard it is to spend your own money. Yes. And we being kids, we ask our parents, like, 600 की चीज लेनी है, 700 की चीज लेनी है. So they even don't even think of spend, like, twice. सोचते भी नहीं है कि बच्चों पे खर्चा करना है, and they spend it. So that was my first lesson that my father gave me, that earning is hard, money is little, and still we spend on you. So this is how the journey started. From 10th to 12th, I taught tuitions. I took computer classes. I took English classes for So many. it was all happening in Indore city only. Indore only. Okay. I if we talk about my birth, like my background, I'm born in Satna. I'm in Indore since year 2000. So it's been pretty good 24 years. 24 I'm in years. Indore. You can say now I'm completely Indori. Yes. So 24 years in Indore, and I just told you that I started in year 2003 earning. So how the shift from Satna to Indore, and what was the cultural difference that you found? Because the that time it was very, very difference is small. huge. It's still huge. If you see students coming from Satna and studying here, it's still huge difference Yes. of culture, environment, and everything. I can say the difference for me was good. It was challenging though, struggling though. To begin with, I'm born in Satna and brought up in Indore. My journey from Satna to Indore was, there was certain financial crisis in the family, for which my dad need to shift to Indore in 1998. Okay. So in 1998, my dad went under some medical emergency. So my granddad thought to come to Indore, like he sent us Indore, me, my brother, and my mama. So he sent three of us to Indore, and we started struggling. My dad, because he was in some medical crisis, so he could not earn for that particular phase till the time he's fit enough to go and earn. And that was a thing which was bothering me. Like, I have a younger brother to take care, because he's 10 years younger to me and I love him a lot, and I cannot just leave him like this. I need to take a step. I need to take charge of things. So my father and mother had faith on me. They gave me courage. Since then, he was the only one, my dad was the only one to guide me from where to start, because they all are well educated. So, and of course they're your elders, so they know much better than you what you can go through. They know you inside out, because they have given birth to us. So that was the time then when I started taking tuitions. Back in year 2005, after completing my 12th, I still remember I completed my 12th on 14th March 2005. That was the date that when my last board exam got over. I went back to home. I said, "Dad, now enough of taking tuitions. Now I want to earn. I want to do a job. I am legally now 18. Now I can do a job." Yes. So he said, "Okay, if you're ready to take the challenge, let's search around." So पुराने जमाने में कैसा होता था, लाइक हमारे उस टाइम के स्कूलिंग टाइम में न्यूज़पेपर पलटते थे. Yes. लिंक्डइन होता नहीं था, naukri.com होता नहीं था, Yes. न्यूज़पेपर पलटते थे, रेफरेंसेस तब भी चलते थे. सो पेपर पलटे 3-4 जगह मैंने इंटरव्यूज पहले से ही प्लान कर लिया था कि देना है. बट द सेम नाइट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई, उस टाइम लैंडलाइन था हमारे घर में, फोन नहीं था, बिकॉज देयर वाज सर्टेन, आई टोल्ड यू, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई अंकल दैट शी इज गुड इन कंप्यूटर, देन व्हाई डोंट I have a school, kindergarten school, why don't you come,
let her come for 2-3 days, see whether she can teach the kindergarten school students, the small kids. Another toughest job. Yes. A tuition or rhymes or poems, she can train them. So my dad asked me, then my mom, being a teacher, my mom started teaching journey after our struggle period. So she said, okay, it's a good thing. You're getting opportunity sitting at home. Why don't you go and try? At least give it a try. Yes. So nervously, I went to that school. So I found the kids very pretty good. Like कुछ stubborn तो होते ही थे, stubborn थे, but yes, it was a easy job because मुझे computer आता था and बस बच्चों को pamper करना होता था कि यार ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सीखोगे तो हमें भी मजा आता था, खेल में उनको सिखाना होता था. It was as a kindergarten school. I liked it. Then 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए. मेरी सैलरीज जो थी आती थी, so मैं कोशिश यही करती थी कि अब पैसे बचाना आ गया था बिकॉज वो एक लेसन जो मिला था मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए. सो पैसे जहाँ बचाना शुरू हुए, डैड के हाथ में या मम्मा के हाथ में दे देती थी कि वॉट एवर दे वांट टू डू दे कैन. सो फिर मुझे वन फाइन डे वही न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत जो हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को डाली थी, बिकॉज माई मॉम वॉज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल कानपुर. सो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा मम्मा को था कि बच्चों को इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, हिंदी आती है बहुत अच्छी बात है. आई बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल आई कैन से फ्रॉम सतना, इट वाज अ स्मॉल टाउन, तो इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बच्चे पीछे हट जाए. सो एक हमारे घर में डेली की हैबिट थी, प्रैक्टिस थी कि हम बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी था. इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी था. या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए या आप डिक्शनरी पूरी लर्न करिए. सो इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे ही हमारा ख़त्म होता था, पढ़े हमारा होमवर्क हो नहीं हो, हमारी पढ़ाई पूरी होनी हो, न्यूज़पेपर पढ़ना होता था और हमारे को डिक्शनरी का एक पेज पूरा पढ़ना होता था. It's not remembering it. Yes, actually that was the best practice to understand the grammar, vocabulary. Yes. And presently dictionary तो कम से कम गायब ही है, अभी तो कुछ पता ही नहीं. So वो हम लोग को जो डिक्शनरी के एक वर्ड्स के मीनिंग्स हम लोग को पता होते थे. हम बच्चों को, हम दोनों भाई बहन का ये था कि हमारे पेरेंट्स ने फिक्स कर दिया था. Robust foundation जिसको बोलते हैं, that has been done. That was the foundation. You can say the core of our communication जो हमारे को दी गई थी, वो आज भी कहीं ना कहीं काम आती है. एंड नॉट ओनली दिस, इफ मैं अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो रैंडमली चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में. सो थॉट ऑफ गिविंग यू अ स्मॉल एक्सपीरियंस अबाउट इट ऑल्सो. मेरे दादाजी जो थे, माई ग्रैंड डैड वॉज अ वेल एजुकेटेड मैन. उनका भी मोटो मैथ्स और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी. सो जैसे हम बच्चे वेकेशंस में हमारे पास छुट्टियां होती थी, उस टाइम तो 3-3 महीने की छुट्टियां होती थी. आजकल की तरह नहीं कि 1-1.5 महीने का सिर्फ गैप है, वो भी होमवर्क करते रहो बेचारे, चार्ट्स बनाते हैं, सब करते हैं. 3 महीने की प्रॉपर छुट्टियां होती थी. सो हम लोगों को उन 3 months में दादाजी हम लोग को सुबह बैठ जाते थे, वो वॉक करके आते थे अपना 4, 5, 6 बजे तक वॉक करके आ जाते थे. उन्होंने अपना जो डेली की रूटीन फॉलो किया. उसके बाद हम बच्चों के ग्रामर की क्लासेस लगती थी. सारे बच्चे, मतलब बुआ लोगों के बच्चे और हम लोग सब बैठे होते थे. जॉइंट फैमिली में थे तो कम से कम 10-12 बच्चे थे. सबकी इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस देते थे, उनको होमवर्क देते थे. प्रॉपर ग्रामेटिकली ट्रेन करना हमारे दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और ये सतना की कोठी में हो रहा है. सतना की कोठी में हो रहा है, जो हमारा मेरा पेटर्नल हाउस है. बिकॉज जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब मेरे दादाजी, दादी तो खैर नहीं, कम पढ़ी लिखी थी, मेरे दादाजी के जो फादर थे, ही वॉज ब्रिटिशर्स जज at that particular time, आज़ादी के पहले, you can say. So फाउंडेशन, जो एक एजुकेशन का फाउंडेशन उन्होंने दिया हम लोगों को, वो हम लोग को आज भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है. एंड आज जो मेरा करियर है वो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ मेरे दादाजी की बदौलत भी है. 19 years मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में. आज हम देखें, हम लोगों का काम बिना कंप्यूटर के रुकता है. आज आप चाहे हम यहाँ शूट कर रहे हैं, चाहे हम लोग उधर ऑफिस में बैठ के कुछ काम करें, बिना कंप्यूटर के रुकता है. हम जब सतना से इंदौर शिफ्ट हुए एक समर हॉलीडेज में, उस टाइम भी 3 months के हॉलीडेज थे, तो हम लोग गए सतना. मेरे दादाजी लेकर आए हम लोग को सतना से इंदौर, इंदौर से सतना लेकर आए. सो एक सेडमैप इंस्टीट्यूट करके गवर्नमेंट का कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस होती थी. सेडमैप सर्टिफाइड ट्रेनिंग क्लासेस होती थी. सेडमैप इंस्टीट्यूट नाम था. उस बैंड में चलता था, आज भी चलता है शायद ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. मुझे दादाजी ने फोर्सफुली वो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोला. मैं रोई कि मैं छुट्टियों के लिए आई हूँ, अभी भी पढ़ाई करूँ, नहीं जाना है तो जाना है. सो 10 बजे से 11 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी. तो वो
जो मुझे आज उन्होंने वो चीज सिखाई, और मेरे साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेली सीखती थी, वो भी चाहते थे मेरे साथ. ही ऑल्सो लर्न एट द एज ऑफ 62, ही लर्न कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. सो मुझे जो वो क्लासेस का जो बेस बना, वो ही कहीं ना कहीं जो मेरा फर्स्ट जॉब था, जो मैं आपको अभी बता रही थी एज अ कंप्यूटर टीचर इन किंडरगार्टन स्कूल, वो ही कहीं ना कहीं मुझे एक ब्रेक थ्रू देने के लिए काम आया. सो आई रियली थैंक हिम फॉर दिस. सो वही चीजें जो हम लोगों को बेस सिखाई गई, जो पढ़ाया गया, आज कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रगल फेज में, बहुत स्ट्रगल किया 19 ईयर्स में, इतने रोलर कोस्टर राइड का जर्नी था मेरा, जो कहीं ना कहीं आज मुझे वो चीज काम आ रही है. So you started at kindergarten, and it is in the year of 2005. And how long you had been 6 there? months. 6 months. Then one fine day, as I told you, कि हम लोग तब तक और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी अपने करियर को बढ़ाने के लिए, एक राइट डायरेक्शन देने के लिए. इन आई रिमेम्बर अक्टूबर 2005, डेट वॉज 21st, क्योंकि जो इनिशियल डेट्स थे ना, वो हमेशा याद रहते हैं, डेट्स भी याद रहती है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स होती है. मुझे रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री थी इंदौर में. yes. वहां पर इंडस्ट्री हाउस में आज भी शायद उनका ऑफिस है, 7th फ्लोर पे है उनका ऑफिस. वहां से वॉक इन ड्राइव का पैम्पलेट आया हुआ था घर पे. तो मैंने पापा को बोला, पापा ट्राई करते हैं. तो एज ऑलवेज कि हाँ चलो ठीक है ट्राई करते हैं. गए, वो लेके गए मुझे इंटरव्यू देने गई, सेलेक्ट हो गई. आप फेल्ट वाओ, सेलेक्ट हो गई, रिलायंस जैसी कंपनी में सेलेक्ट हो गई. ठीक है. डैड ने बोला कि ठीक है आप जा रहे हो, बट रिमेंबर अ लेसन फ्रॉम मी. इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, तो इंटरव्यू का एक लेसन, अगर आपको गलत भी कुछ आता है ना, तो कॉन्फिडेंटली उस चीज पे अड़े रहना. अगर आपने गलत बोल दिया है, जवाब गलत दे दिया, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया और हुआ भी यही, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इंडस्ट्री में मैं नई थी, तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछते, इंडस्ट्री के बारे में तो कुछ पूछ नहीं सकते थे. तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि न्यूज़पेपर कितने का आता है. जनरिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर. मैंने कहा 3 रुपए का आता है. अब हम लोग प्राइस देखते नहीं थे, हम लोग अंदर का कॉन्टेस्ट पढ़ा, जितना भी काम का होता था वो पढ़ा, न्यूज़पेपर बंद किया, हो गया काम. 3 रुपए का आता है. कहते नहीं, गलत है, 2 रुपए का न्यूज़पेपर आता है. उसमें शायद 1.75 का न्यूज़पेपर आता था. तो 3 रुपए का नहीं. मैंने कहा नहीं, आपके घर में आता होगा 1.75, मेरे घर में 3 रुपए का ही आता है. So he was quite impressed कि ऐसा नहीं है कि फंबल करके अपना स्टेटमेंट बैक ले लिया. यही चीज मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी कि आप गलत बोलो, पर डंडे की चोट पे बोलो. फिर बाद में अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है मेरे से गलत हो गया, मैं फिर रिवाइज कर लूंगी एक बार कि कितने का आता है. सो इट वाज नथिंग. उन्होंने इसलिए सिखाया ताकि कॉन्फिडेंट रहे. कोई आपको फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई आपको ऐसा नहीं बोल दे कि आपने गलत जवाब दिया और आप फंबल होके बैक स्टेप कर लो. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरे करियर में मैंने 100 अगर इंटरव्यूज दिए तो 90 इंटरव्यूज मैंने क्रैक करे हैं, जस्ट टू गिव यू अ रेशो. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज कॉन्फिडेंस दैट माई पेरेंट्स हैव इन मी. मैं अभी भी आई हूँ तो मैं उनको बताकर आई हूँ पापा कि मैं जा रही हूँ. कहते ठीक है अच्छे से करके आना, डोंट वरी, सब अच्छा होगा. ठीक है डैड, मैं होकर आती हूँ. सो एक जो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स देते हैं स्ट्रगल में, जो साथ देते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देन 2006 की बात, 2005 की बात है. मैंने 2005 दिसंबर में वहाँ ज्वाइन कर लिया. अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उन्होंने टाइम लिया था, क्योंकि बहुत सारे वॉक-इन्स थे तो लोगों को स्क्रूटनी करना. सेलेक्ट जरूर हो गई थी, ज्वाइनिंग नहीं आई थी. 6 दिसंबर की मेरी ज्वाइनिंग आई 2005. वहां से स्टार्ट किया. तब तक मॉन्स्टर और timesjob.com आ चुका था मार्केट में. क्योंकि अब आप आईटी इंडस्ट्री से एक्सपोजर में आ गए थे, तो क्यूरियोसिटी होती है, बीइंग अ यूथ क्यूरियोसिटी होती है चीजें लर्न करने की. मैंने रेस्ट किया खुद को. विप्रो की ड्राइव थी यहाँ पर इंदौर में ही. किसी एक कंसल्टेंट के थ्रू मुझे कॉल आया कि आपने रजिस्टर किया है कि यहाँ आ रहे हैं विप्रो वाले, सो व्हाई डोंट यू कम. मैं ऑफिस से बोल के, अब बता तो कि जा नहीं सकते थे कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ एक्सक्यूज दे के ही गए. वहां पर पूरा दिन हो गया. डैड वेट करते थे, डैड लेके जाते थे ऑलमोस्ट सब जगह. डैड वेट करते रहे कि अब आएगी. मैं टाइम लग रहा था. मैंने इंटरव्यूअर से पूछा कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना टाइम लगेगा, पूरा दिन लग जाएगा, 8 बज जाएंगे आपको. तो अगर किसी कोई वेट कर रहा था उनको बोल दे जाने. तो मैं डैड के पास गई. हम लोगों ने नीचे उतर के, उस टाइम बिग समोसा मिलता था, बिग समोसा खाया. मैंने कहा डैड टाइम लग रहा है, आप जाओ. कहते ठीक है. सो वो चले गए. जब वो गए तो फिर मेरा इंटरव्यू नंबर आया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया और मुझे 3 दिन बाद की ज्वाइनिंग दे दी कि आपको 3 दिन बाद पुणे शिफ्ट होना है, रिलोकेट होना है. हॉश पॉश में मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब
स्ट्रगलिंग हो गया था एंड लकीली उस टाइम पे 1 मंथ 2 मंथ का नोटिस होता नहीं था किसी भी इंडस्ट्री में 1 मंथ 2 मंथ्स का नोटिस इतना होता नहीं था, तो मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाके रिजाइन किया, एक्सक्यूज देके उनको मनाया कि मेरे को इट्स बेटर फॉर माय करियर ग्रोथ जाऊं। बट वो जर्नी, वो एक लड़ाई करने से पहले मुझे पहले घर पे फादर को कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, दैट टू अ गर्ल चाइल्ड, कि पूना में कोई बेस नहीं है, आप कहाँ जाके रहोगे। सो मैंने बोला कि मैं बात करती हूँ उनसे, क्या वो बोलते हैं। तो उनसे बात करी विप्रो वाले से, उनका 15 डेज का अकोमोडेशन हम आपको दे देंगे, मीनवाइल यू सर्च। तो वो 15 डेज के लिए होटल में जाके रहोगे, कौन कौन जा रहा है, कितने लोग सेलेक्ट हुए। सो वो फादर का जो पापा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आए उठ के। देन माय मदर बैक्ड मी अप कि वो जा रही है, उसको जाने दो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ उसको, वो जाएगी और मैं देखती हूँ कौन रोकता है उसको। सो दीज वर हर स्टेटमेंट कि कौन रोकता है उसको। फिर यही चीज मैंने अपने दादाजी को कन्विंस किया। मेरे घर में काफी सारी चीजें जब तक मेरे दादाजी थे उनके पूछे बिना होती नहीं थी। कुछ बड़े डिसीजंस जो होते थे इसलिए नहीं होती थी क्योंकि बड़े हैं घर के, एक स्ट्रगलिंग फेज हमारा चल रहा था, तो राइट और रॉन्ग हमें ज्यादा अच्छे से बता सकते थे दादाजी, क्योंकि उन्होंने भी हिज ओन एक्सपीरियंस, वो पार्टीशन का एक्सपीरियंस, जो इंडिया का पार्टीशन जब हुआ था, at least he can give the right direction, this is right and this is wrong. So वो जो चीजें जितनी भी हुई मेरे साथ लाइफ में, फिर मैंने मम्मा का स्टेप लिया। ठीक है, मुझे डैड, बस हमारी, मुझे याद है ढक्कन वाला कुआं से बस मिलती थी उस टाइम पूना जाने के लिए, सिटी लिंक्स बस थी। yes. उस बस में मुझे पापा ने बिठाया, राजेंद्र नगर में शायद उस बस का दूसरा स्टॉप था। तो डैड और मॉम, उस टाइम पे एलएमएल स्कूटर होता था वेस्पा, पापा के पास ग्रीन कलर का स्कूटर, आई स्टिल रिमेम्बर। मॉम, डैड और भाई को मैंने फिर अपने साथ बस में बिठा लिया कि मुझे पता था राजेंद्र नगर स्टॉप पे पापा आएंगे ही सही मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो पापा भी मम्मा को लेके राजेंद्र नगर स्टॉप तक आए। वहां पे और भी लोग जो हमारे साथ के पूना जाने के थे बैठे, वो भी साथ में, और पापा, मम्मी और भाई उतर गए। And that was the time मुझे लगा घर छूट गया मुझसे जब वो बस चली वहां से। तो एक जर्नी थी वो इंदौर से पूना तक की, वो तो एक नॉर्मल बस की 12 आवर्स की जर्नी आप बोल सकते हो, बट वो जो 12 आवर्स मेरे लिए बीते कि एक घर छूट गया। बीइंग अ गर्ल थोड़ा इमोशनल हो ही जाती है लड़कियां। तो जब वो घर छूटा उसके बाद मैं पूना गई, होटल मिल गया, बस स्टॉप पे ऑलरेडी कॉलेज उनकी बस आई हुई थी विप्रो वालों की, तो उन्होंने हमें अकोमोडेशन पे ड्रॉप किया। Day 1 कैब आनी थी हमारे, मतलब कैब का ऑप्शन था, तो कैब आई हम लोग को पिकअप करने, हम लोग पहुंचे विप्रो। मतलब स्टार्टिंग से, क्योंकि स्मॉल टाउन से इंदौर में उनके लिए उस टाइम पे स्मॉल टाउन ही होता था, पूना के लिए अभी इंदौर काफी ग्रो कर गया है। पूना की लाइफ टोटली अलग। तो एक स्मॉल टाउन से पूना में शिफ्ट होना, स्ट्रगल देखना, डिफरेंट कल्चर, लोग बहुत ओपनली बात कर रहे हैं। हम लोगों को ये ट्रेन किया गया था कि अगर रास्ते से निकल रहे हो तो नजरें झुका के निकलो, नजरें झुका के वापस आओ। So, वहां पे इतना ओपन कल्चर, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, जो ओपन कल्चर, ओपननेस थी वहां पे, दैट वाज समथिंग फॉर, जो भी था उनका ओपननेस अडॉप्ट होना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो सारे कल्चर्स के साथ आपको टाइमली चेंज होना पड़ेगा। yes, true. एडजस्ट करना जरूरी था, एडजस्ट किया। वहां से स्ट्रगल करते करते वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय डैड कि अब हो गए 3 साल, 2010 की बात है, अब हो गए 3 साल, कम बैक होम। आपकी याद भी आती है, ऑफ कोर्स दूर थी तो याद भी आती है, एंड भाई भी बड़ा हो रहा था तो वो भी मिस करता था। ही वॉज जस्ट आई गेस 4th स्टैंडर्ड में था जब मैं उसको छोड़ के गई। जब मैं आई तो 7th स्टैंडर्ड में था वो, 7th 8th में था, स्टार्ट हो गई थी उसकी 8th क्लास। मैं वापस आई, यहाँ आके थोड़ा सा गैप हुआ 1-1.5 महीने का जॉब ढूंढने में, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी से छोड़कर यहाँ आ रहे हो। टच खत्म हो गया था लोगों से, इंडस्ट्री से टच खत्म हो गया था कि किससे कनेक्ट करें अब इस इंडस्ट्री में जॉब के लिए। पेरेंट्स जो थे वो टीचिंग लाइन के थे। अप्लाई करना स्टार्ट किया, एक फ्रेंड के थ्रू रेफरेंस में वेब दुनिया में ऑप्शन आया। Okay. वेब दुनिया ज्वाइन किया मैंने। So what was your first profile in Reliance? In Reliance, I started with customer care executive. And in Wipro? Wipro was customer care executive plus HR, because gradually join उसी stream से किया था। Okay. But then मेरा interest HR segment में बहुत था,
Okay. शुरू से ही. So जब मैंने देखा वहाँ के HR, क्योंकि मेरे लिए तो एक यू कैन से जो भी रिक्रूटर आया था मुझे रिक्रूट करने, आई स्टिल डोंट रिमेंबर हिज नेम, जो रिक्रूटर आया था मेरे लिए तो वो इंडस्ट्री के एक्सपोजर देने के लिए मुझे आया था. सो आई फील कि यार ये तो बच्चों की लाइफ बना रहे हैं. सो वो इंटरेस्ट मेरे में डेवलप होता गया. एंड देन वहां जाके जब मैंने देखा कस्टमर केयर की प्रोफाइल, मैंने वहां पर एज अ सीनियर कस्टमर केयर ज्वाइन किया था. वहां जाके देखा कि यार मेरे लिए स्कोप है ग्रो करने का, क्योंकि विप्रो वाज वेरी वास्ट इंडस्ट्री एट दैट पर्टिकुलर टाइम और ग्रोइंग फेज था विप्रो का. स्टार्ट ही हुआ था, फेज 1 हिंजीवड़ी स्टार्ट ही हुआ था. तब मैंने वहां कनेक्ट किया HR टीम से कि मुझे ज्वाइन करना है आपकी टीम. सो दे सेड कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, MBA नहीं हो, ग्रेजुएशन चल रही है आपकी. आई वाज अ स्टूडेंट ओनली, मैं पढ़ ही रही थी तब. तो ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, तो कैसे करोगे आप? तो मैंने कहा एटलीस्ट ऑप्शन दे के देखो, एक बार ट्राई करके देखो. नहीं कर पाऊंगी ज्यादा से यही होगा, मना ही करोगे और क्या करोगे. दे स्टार्टेड गिविंग मी वर्क, देन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल. आई ऑलवेज यूज्ड टू इंटरेक्ट की कैसे इंडस्ट्रीज को टच करते हैं, लोगों की जॉब कैसे लगवाते हैं. सो मैंने स्टार्ट किया एंड लकीली क्लिक हो गया. वहां पे जो उस टाइम पे मेरे को लीड कर रहे थे, मेघा नाम था उनका, उनको क्लिक हो गया कि यार शी कैन डू समथिंग गुड. देन आई स्टार्टेड. फिर वहां से जो HR इंडस्ट्री का मैंने टच स्टार्ट किया. यहाँ फिर मैं आई तो वही चैलेंज वेब दुनिया में कि आप MBA नहीं हो, HR कैसे हम आपको बिठा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिग्रीज की वाकई वैल्यू होती थी. HR के लिए MBA चाहिए ही चाहिए. मेरा BCom कंप्लीट ही हुआ था 2008 में, तो मैं कैसे आपको वो कर लूँ. मैंने 2008 ग्रेजुएशन के बाद अपनी स्टडीज को थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर दिया था. पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं परस्यू करा था बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट आई जस्ट सेड. एंड मन भी नहीं था क्योंकि अब कमाने लग गए थे, पैसा हाथ में आ रहा था, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था. पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था. सो उस टाइम पे मैंने बोला उनको कि ठीक है, आप मुझे क्या प्रोफाइल ऑफर कर रहे हो. उन्होंने जो प्रोफाइल ऑफर करी, आई एक्सेप्टेड इट. देन फिर मैंने विद इन फ्यू मंथ्स जब मैंने प्रोफाइल से आउट ऑफ द जंप जाके उनको बोला कि नहीं मुझे ये भी करना है. सो समहाउ लड़के फाइट करके दोनों चीज़ों को पैरेलली मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी. हो गई स्टार्ट. 2013 में मैंने वेब दुनिया छोड़ा. वहाँ पे भी आई कैन से अगर मेरा IT का बेस जो इंदौर मार्केट के लिए बनाया है, विप्रो वाज वेरी सिस्टमैटिक. वहाँ पे अगर आपको सिर्फ अपने मैनेजर से काम है तो सिर्फ वो मैनेजर तक के दायरे में रहेगा, आपकी एक छोटी सी टीम के दायरे में रहेगी. बट व्हेन आई वेंट टू वेब दुनिया, वहाँ जो मुझे एक्सपोजर मिला, वेब दुनिया इज नाउ आई गेस डिसॉल्व्ड. वेब दुनिया है नहीं है अब एग्जिस्टेंस में, दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लिया है. जो मुझे एक्सपोजर मिला इंदौर मार्केट का, दैट वाज समथिंग वेरी रिमार्केबल जो मेरी जर्नी के साथ आज भी चल रहा है. वेब दुनिया एक्चुअली taught me to be the people's person. Being in versatile profile, different profiles, they taught me how to be a human person. Being into HR, if you cannot be a human person, you cannot survive in this market, to be very honest. First of all, you need to be the human resource. Yes. Then only you can source the resource. Yes. You need to be the human resource. HR means human resource, as everybody know. Human resource doesn't mean to calculate salary, doesn't mean to recruit a person, doesn't mean of course they all are verticals of human resources, definitely. But giving a personal touch to a candidate, a personal touch to an existing employee, this is something which is the need of an hour, you can say. Reason behind this is, first of all, I'm very much spiritual. I'm connected to spirituality since last 22 years. Wow. So I follow Brahma Kumaris. I get up at 4:30 in the morning. Sometimes at 3:30 I do yoga, meditation. Not that yoga, the dhyan yoga. I do that. Then I take a break and then I sleep. I go back to nap again. I don't start my day so early. I just get up, do meditation, take power, take charge, energies, the positive energies, and tell the aura what I'm going through, what I'm facing. This is the challenge. Even starting this podcast, when I sat here, I said whomever we preach said it's not me who is speaking, it's you have to speak. Okay. Because when you when you place God in front of you everything will come, भगवान का किया हुआ ही आएगा. Yes, right. So this is something spirituality which taught me, and this is the only spirituality
जब मैं आपको अपने डैड की हेल्थ इश्यूज का बता रही थी, डैड को एक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, 2 वॉल्व ब्लॉक हो गए थे डैड के इन ईयर 2000 की बात है जब हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए। सो समहाउ हमें इंट्रोड्यूस किया गया स्पिरिचुअलिटी से। मेरा ब्रदर, हम जिस घर में शिफ्ट हुए थे, मेरा ब्रदर, उसके नीचे ही ब्रह्म कुमारीज आश्रम है। तो माय ब्रदर व्हाट ही यूज्ड टू डू, जैसे सपोज एक रूम है, एक रूम का एक कॉर्नर था, वहां पे लेट जाता था उल्टा। वो वाज स्मॉल, ही वाज 2.5 years, यू कैन से 3 years old, लेट जाता था कि मैं पावर ले रहा हूँ बाबा से। तो माय मम्मा वाज स्कैर्ड कि ये कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ गया है, किससे पावर ले रहा है। एक होता है ना ह्यूमन, मतलब हमें लगता है कि बच्चा क्यों ऐसे लेट गया है, क्या हो गया है उसको। सो मम्मा ने पापा को बोला कि ये देखो क्या कर रहा है। तो पापा ने कहा कि देखते हैं क्या है। तो एक दिन मम्मा नीचे उतरी, तो ब्रह्म कुमारी की आश्रम की जो दीदी होती है, दीदी ऐसे ही नीचे थी, वो भी सेम बिल्डिंग है, तो उनका एंट्रेंस से बाहर निकल के हमारे एंट्रेंस की तरफ आ रही थी कुछ काम से। तो मम्मी को बोलती है कि आप, विनीता नाम है मम्मी का, आप एक बार आइए नीचे, सेंटर जरूर आइए। तो जब मम्मा वहाँ गई, भाई को लेके गई, क्योंकि वहाँ पे हर थर्सडे भोग बनता है, लाइक प्रसाद मिलता है। सो हम वो प्रसाद, बच्चे हम प्रसाद की लालच में जाते थे कि प्रसाद मिल रहा है। सो मम्मी एक दिन थर्सडे को गई, वहां देखा जो रियलिटी मम्मा को पता चली, जो 7 days का कोर्स होता है उनका, वो करके फिर मम्मा ने हम लोग को उस राइटर्स पाथ में गाइड कर दिया। सो बीइंग अ पंजाबी, आज भी हमारे घर में सिंस लास्ट 20 years ना अनियन आता है ना गार्लिक आता है। बिग थिंग। सात्विक खाना बनता है घर में, घर का ही खाना बनता है। हाँ, बच्चे जरूर खाने लग गए हैं अब, भाई बहन हम खाते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम जब पूना गए हमारे पास ऑप्शन नहीं था, खाना ही पड़ता था, ऑप्शन ही नहीं था। तो जो एक स्पिरिचुअलिटी से टच बेस हुआ, एक नेगेटिव लाइफ में, करियर में बहुत सारी चीजें नेगेटिव होती हैं आपके साथ, बहुत फेजेस आते हैं आपकी लाइफ में, बट जो लड़ने के लिए जो एक पावर, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो स्पिरिचुअलिटी से मिलता है मुझे। 3:30 बजे उठ के मैंने वही, जब स्ट्रगल फेज हुआ विप्रो में, जब प्रॉब्लम आती थी मुझे, मैं उठ के बैठती थी, मैं कहती थी कि अब क्या करूं मैं, आई एम ब्लैंक, नाउ यू हैव टू गाइड मी। वेब दुनिया के टाइम पे भी यही हुआ मेरे साथ। जब स्ट्रगल फेज आया लाइफ में, मैंने उनको बताया कि गॉड को, मतलब ऑरा को आप बोलते हो कि गॉड प्लीज हेल्प मी आउट, व्हाट टू डू। गाइडेंस मिलती गई, आप अपने आप ही एक, मतलब चीजें होती गई, चलती गई। वेब दुनिया से फिर एक करियर ब्रेक आया, बिकॉज वेब दुनिया के बाद अब जो मेरा सैलरी स्ट्रक्चर हो गया था इंदौर मार्केट में, उस सैलरी स्ट्रक्चर पे उस टाइम पे आपको, मतलब लाइक ना अच्छी कंपनीज नहीं मिल रही थी, लिमिटेड एमएनसीज थी। यस। टीसीएस था नहीं इंदौर में, क्रॉस कर जाते हैं बिल्कुल। मार्केट में, इंदौर मार्केट में अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, टीसीएस है, विप्रो है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं। उस टाइम पे तो स्टार्टअप्स भी इंदौर में बहुत कम होते थे, स्टार्टअप्स नहीं होते थे। कुछ गिने चुने बड़ी कंपनीज थे, इम्पेटस थे, वेब दुनिया थी, डायस्पार्क थी, शायद में 1-2 सीडीएन सॉल्यूशंस थी, और सीएससी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में सिर्फ सीएससी हुआ करती थी और आइडिया का ऑफिस हुआ करता था। आई रिमेम्बर। वेरी ट्रू। टेलीकॉम इंडस्ट्री जरूर थी, एयरटेल वगैरह बहुत थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री, एयरटेल का ऑफिस बहुत सारी जगह था, रिलायंस था, ये सब चीज़ें थी। बट मैंने जो सोच लिया था कि अब आईटी इंडस्ट्री से जंप करके मुझे वापस टेलीकॉम में नहीं जाना, बिकॉज एक ब्रेक, एक जंप होता है टेलीकॉम से आईटी इंडस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग टेलीकॉम इज बैड, बट येस इट्स अ जंप to IT industry. So from when you started the hardcore HR work? The hardcore HR work was started when I was with Wipro itself. Okay. जो सेकंड प्रोफाइल थी मेरी, जो प्रीमियम प्रोफाइल के लिए मुझे रखा गया था, प्राइम प्रोफाइल के लिए, वो मैंने सबसाइड करके मेन HR कोर में घुस गई थी। Okay. Started learning and you won't believe, मैंने लर्न कर करके मैं आज 18-19 years अपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं मैंने। एंड आज मैं इस प्रोफाइल पे पहुंची हूँ कि मैं एक कंपनी की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हूँ, एंड नॉट 7, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सो अभी मैं 2 कंपनीज की चीफ हूँ। स्टिल आई एम ट्राइंग कि लेट मी प्रूव माई सेल्फ मोर टू एक्वायर मोर वर्क फ्रॉम देम। सो विद विप्रो देयर वर वेरी गुड थिंग्स व्हाट आई लर्न। वेब दुनिया taught me a lot about इंदौर मार्केट। देन वेब दुनिया के बाद कुछ स्टार्टअप्स ज्वाइन करे मैंने। ओके। स्टार्टअप्स में चैलेंजेस अलग ही होते हैं, बिकॉज वेब दुनिया देखिए एक एस्टैब्लिश कंपनी, सब चीजें सिस्टमैटिक सॉर्टेड थी।
जहां आपने स्टार्टअप ज्वाइन किया आपको स्क्रैच से सब चीजें करनी होती थी। सो उन स्क्रैच से करने के लिए आप कभी एडमिन बने, आपको भी अकाउंट्स भी हैंडल किया आपने। yes. सो रिक्रूट करने से लेकर एडमिन बनना, एचआर के काम, ऑल द एचआर वर्टिकल्स, जितने भी एचआर वर्टिकल्स होते हैं, आई कैन से जरूर मेरे से पुराने एचआर वर्टिकल्स, कुछ जो छोटे एचआर वर्टिकल्स हैं उनसे छूट गए होंगे, बट यस आज भी अगर मेरे को एक दिन का टाइम दिया जाए तो मैं वापस से अपने को पॉलिश करके, नॉलेज को पॉलिश करके वापस से वो काम किया जा सकता है। सो ओवरऑल माय जर्नी, जो अभी तक की जर्नी है मेरी, when back in year 2000 I can say 20 अगेन करियर में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। कोविड आ गया था मार्केट पे। कोविड के पहले मैं काफी कम्युनिटीज से एसोसिएटेड हो चुकी थी। लाइक लिंक्डइन लोकल, देयर वाज वन कम्युनिटी लिंक्डइन लोकल इंदौर चैप्टर which right now is no more. So I was somehow associated with them. मैंने उनको कुछ कंपनीज के थ्रू मैं उनको फंडिंग करा के हम लोग एक इवेंट होस्ट करते थे छोटे से कम्युनिटीज को, मतलब लाइक जो स्टार्टअप्स के हेड हैं, जो एचआरस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको गेट टुगेदर कराने के लिए हम लोग स्टार्ट किया। हम लोगों ने 3 लोग थे। सो बट कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे सब चीज़ें बंद हो गई, सारे आपके नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बंद हो गए। देन वन फाइन डे कोविड में जॉब्स का भी इश्यूज होने लग गया। आप चैलेंजिंग रोल्स में आ गए क्योंकि एचआर थे। एचआरस के लिए देखिए, एचआरस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल्स हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज हमें हमारे जॉब को प्रूव करना पड़ता है कि हमने क्या काम किया। Because HR is an expense for the company. Yes. Because they are not It's productive a in terms bitter truth of the industry. Yes, it's not a revenue generating department. Operation department is always not a revenue generated department. Yes. So at that particular time, I joined like you know struggling phase था। हमने काफी सारी communities बंद हो गई, networking बंद हो गए, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए डरते थे। somehow वो फेस पास ऑन हुआ वापस से जॉब्स के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, जो जितना थे जिस पे थे आप उसी पे ही रुके रहे कि नहीं ठीक है, somehow सर्वाइव करना है इस चीज को, इस पेंडेमिक को सर्वाइव करना है। उस सर्वाइवल के बाद उस सर्वाइवल में जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और बाकी सब प्रोफाइल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप हो गया था। मार्केट बहुत बूम पे था आईटी का। बट हम एचआरस के लिए बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, श्रिंक हो गया था, बहुत ज्यादा श्रिंकेज आ गया था मार्केट में। फिर 2020 के बाद मार्केट बूम हुआ वापस से एचआर से, क्योंकि खुलना शुरू हो गई चीजें। हम लोग ने अप्लाई करना, मतलब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, गॉट again an opportunity to work with a startup. So in that startup I worked hard, gave like you know pretty good time, working hours. Tell me something about that. What is your experience in terms of working with a startup and working with certain established company where there is already defined roles, departments and roles? So what was the difference of these two? See, working in defined role always like you know it's always good because you know कि आपको सुबह 9 बजे अगर ऑफिस पहुंच के ये काम करना है तो ये करना है। But when you are with startup the roles are quite challenging plus interesting because being in startup is itself a challenge. startup के लिए भी आप देखते हैं जो भी ओनर्स उनको कितना challenges face करना पड़ता है। So वो eventually वो challenges कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट हमारे तक होते हुए आते हैं। अगर एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो हमें जस्टिफाई करना है कि हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। वो लोग डायरेक्टर के पास या ओनर के पास लास्ट में जाएंगे, पहले एचआर के पास आता है क्योंकि सारे कम्युनिकेशन एचआर के थ्रू ही होते हैं। एचआर इटसेल्फ इज अ ब्रिज बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉयर। सो हमें ह्यूमन पर्सन बन के, कई बार ह्यूमन पर्सन होते हैं हम लोग, ह्यूमन पर्सन होते हैं, हमें ह्यूमन पर्सन बन के कई बार उनके फेवर में बात करनी पड़ती है, कई बार डायरेक्टर्स के फेवर में बात करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश यही करते हैं कि एम्प्लॉय के फेवर में बात करें। सो जो चैलेंजेस उस टाइम पे आते थे हम लोग को कि स्टार्टअप है, हम नहीं ज्वाइन कर सकते। हम एक बड़ी कंपनी की, अगर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, हमने एक बड़ी कंपनी के डेवलपर को टारगेट किया, हमारे पास ओपनिंग आई, हमारा बजट आ गया, मेरी टीम ने एक बड़ी कंपनी के डेवलपर को टारगेट किया कि आप ज्वाइन कर लो, हमको ये पैकेज दे रहे हैं, सब चीजें हैं, ठीक है। स्टार्टअप में उस टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया कि बूम पे था,
तो काफी सारे पैकेज ऑप्शंस भी अवेलेबल थे इंदौर मार्केट में। सो लोगों ने बोला कि ठीक है हम ज्वाइन कर लेंगे, बट हमारे कुछ शर्तें हैं। सो कई बार ये होता है कि हम जब बड़ी एमएनसीज में होते हैं तो हमारा एम्प्लॉय शर्तें नहीं रख सकता अपनी। यस, ट्रू। कैंडिडेट अपनी शर्तें नहीं रख सकता, बट यहाँ पर काफी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, काफी हद तक जाके उनको कन्विंस करना पड़ता है जो आपका टैलेंट है जिसको आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो। सो काफी हद तक जाके कन्विंस करना पड़ता है कि बॉस दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। सो वो एक कन्विंस आप तभी कर सकते हो जब आप एक ह्यूमन पर्सन हो। अगर कैंडिडेट फॉर एन एग्जाम्पल, आज मार्केट में टैलेंट भी बहुत है, देखिए ना टैलेंट की कमी है ना लोगों की कमी है, टैलेंट भी बहुत है, काम भी बहुत है, प्रोवाइडेड है कि राइट क्लिक कब किसको हो जाए। सो टैलेंट को गेज करने के लिए आपको डे वन से उसके साथ वैसा बॉन्ड बनाना पड़ता है। स्क्रीनिंग प्रॉपर होगी, अगर टैलेंट आपका जो कैंडिडेट है अगर उससे आपने अच्छे से एक बॉन्ड बना लिया, सो मे भी हो सकता है कि आपने सब स्क्रीनिंग करके इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो जाए, वो हो सकता है मना कर दे आपको, बट आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो हमें वापस से टकराते हैं, एक टच रहता है तो कहीं ना कहीं हमारा रेफरेंस उस चीज में काम आता है। फिर आप, मेरे पास तो कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि लोगों ने उस टाइम पे मना कर दिया, फिर 15 दिन बाद 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे, उन्होंने हमारे पास वापस आए कि मैम अभी भी वो प्रोफाइल ओपन है क्या हम वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई वाज मोर देन हैप्पी टू एक्वायर देम, बिकॉज उस टाइम पे उनको उस चीज की वैल्यू पता थी। यस, जब तक वो छूटता नहीं तब तक समझ में नहीं आता है कि क्या खोया। हाँ, किसी चीज में, नए चीज में जाने के लिए पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तभी वो कहते हैं इंसान की भी वैल्यू उसके जाने के बाद पता चलती है। एक और सवाल मुझे पूछना है आपसे या जानना है कि स्टार्टअप में क्या जो बिजनेस ओनर होते हैं या जो फाउंडर होते हैं उनका इंटरवेंशन ज्यादा होता है कंपेयर टू द एस्टेब्लिश्ड कंपनी, एंड व्हेन इट इज देयर हाउ यू हैंडल दैट? सी, it's a very tricky question that you have just asked me. I know I'm going to get many calls after this. To be very honest, yes, intervention होता है things, because चीजें systematic नहीं होती। डिपार्टमेंट के रोल्स तो होते हैं, पर उस डिपार्टमेंट को फॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक वो फेथ होना जरूरी होता है डायरेक्टर का कि नहीं ये डिपार्टमेंट इज डूइंग गुड, कि मेरा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आप देखें, अगर बड़ी कंपनी बनना है, छोटी कंपनी स्टार्टअप 6 लोगों से या 2 लोगों से या 4 लोगों से स्टार्ट होता है, जहां आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस एक्वायर कर पाओगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है, मैं अगर इसको प्रॉपर तरीके से, अगर उनकी स्टोरी, अगर उनके बिहाफ पे मैं, अगर उनके आदमी होकर मैं अगर बात करूं, तो वो राइट इंसान उस राइट प्रोफाइल में बहुत मुश्किल से मिलता है। सो अगर किसी स्टार्टअप ने अगर 4 डिपार्टमेंट क्रिएट किए और अगर 3 डिपार्टमेंट में गलत इंसान गलत पोजीशन होल्ड कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली वो 4th पर्सन भले ही राइट कैंडिडेट हो फॉर दैट प्रोफाइल, बट वो डाउट बन जाता है। सो वो चारों को एक ही कुर्सी में बैठा के देखते हैं। सो दैट इज अनदर चैलेंज। सो उसमें हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई मेरा डिपार्टमेंट छोड़ दो, आई कैन हैंडल इट प्रॉपर्ली। सी, टू प्रूव योरसेल्फ इज always to get their trust. If you are doing something in favor of company only, you need to tell them timely कि ये चीज जरूरी है करने के लिए। And sometimes for us as a human resource department, it's quite difficult to convince them to implement the already compliance policy that we are following. Because HR में बहुत सारे compliances होते हैं जो startup में शायद नहीं follow होते। Yes. हमें उनको convince करना, I being in HR उनको convince करना कि नहीं, you have to follow this is in the rightest of the company, like you know, building their future also. Because see, अगर आज हम कोई भी कैंडिडेट को हम अगर कुछ बेनिफिट्स देंगे तो वो कैंडिडेट को भी ये लगेगा कि कंपनी हमारे बारे में सोच रही है। जहां कंपनी ने हमारे बारे में सोचना शुरू करा तो हमारी लॉयल्टी बढ़ना शुरू हो जाती है उस कंपनी के लिए, फिर वो स्टार्टअप हो, फिर क्यों ना वो एक एमएनसी हो। और प्लस एक पॉइंट हर कैंडिडेट को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारी जो स्टार्टअप में ग्रोथ है, it is way much more towards like you know monetary benefits in terms of MNC. MNC में set parameters होते हैं, growth limited होती है क्योंकि हमारी हायरार्की बहुत बड़ी होती है MNCs में। बट स्टार्टअप में अगर एक एम्प्लॉय है जिसने एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किया, वो डेफिनेटली आगे चल के
L1 लेवल पे भी काम कर सकते हैं, L2 लेवल पे भी काम कर सकते हैं, मैनेजरियल रोल भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उसको रिस्क लेने की काबिलियत हो। एग्जैक्टली रिस्क लेने की काबिलियत हो, प्रोवाइडेड उसको पता हो कि कंपनी का गोल क्या है। अगर कंपनी के गोल्स क्लियर हैं, सेट, देखिए कई कंपनीज होती हैं कि जिनको पता है कि हमें थोड़े टाइम के लिए ही इस एम्प्लॉय से सिर्फ लिमिटेड काम कराना है, क्योंकि लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, प्रोजेक्ट्स की जो टैट है वो लिमिटेड होती है। प्रोवाइडेड वही एमएनसीज में भले आज एक एमएनसी का एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, बट जो ये जो रिसेशन पीरियड आता है, रिसेशन जो एक एम्प्लॉय को जब हम बोलते हैं कि आप छोड़ के जाओ बड़ी एमएनसीज में, वो एक बहुत लंबे फेज के बाद बोलते हैं, जब वो प्रोजेक्ट खत्म होके जब लगता है कि अब इस एम्प्लॉय की कॉस्ट हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं बेयर कर पाएंगे। तो ये एक डिफरेंस जो एमएनसी का और स्टार्टअप का रहता है वो तो रहता ही है, बट आजकल इंदौर में ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो एक लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चल रहे हैं। आप देख भी रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो छोटे से स्टार्ट किया था उन्होंने, कहाँ से स्ट्रगल करके कहाँ आज पहुंचे हैं। सो आजकल जैसे आप अगर नाम लें तो वेब दुनिया जब मैंने ज्वाइन किया था, इट वाज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट आज जो जिस कंपनी ने उसको एक्वायर किया, दैट इज अ बिग मर्जर दैट दे हैव डन। अभी अगर मैं स्टार्टअप के एचआर रूल्स के बारे में अगर बात करूं, यू आर हेडिंग टू different companies and Yes. you are heading that HR department. Yes. How much compliance and integrity takes care and takes part in terms of creating policies for a newly formed company? It is a very challenging role, of course. As I said, it requires your almost, I cannot give a tag for this because every day it's a new challenge, every day it's a new policy implementation. Okay. There is a set format to for the startups to follow certain rules, but as it's a startup, you never know when you are going to be a company from size 10 to company from size 50. So when you are 4, when you started, you are 4. Initially there is no HR over in the company. Yes. Because जब 4 लोग ही हैं, so इंसान पहले यही सोचता है कि हम रेवेन्यू जनरेट कर लें। जहां 4 से ज्यादा लोग बढ़ते हैं, या आई कैन नॉट गिव यू एग्जैक्ट नंबर, जहां लोग बढ़ना शुरू होते हैं वहां दिखता है कि अब इनको कोई मैनेज करने के लिए चाहिए, देन एचआर का रोल स्टार्ट होता है। जहां हमें मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स के इंटरफेरेंस आ जाता है, तब वहां पर अगर एक ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपने एक एजुकेटेड, जिसको नॉलेज है, नॉट एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, जिसको स्ट्रक्चर की नॉलेज है, चीजों की नॉलेज है, वो आपका जो स्ट्रक्चर खड़ा करके देगा कंपनी का, वो एक काफी वे डिफरेंट होगा आपको लॉन्ग रन में ग्रो करने के लिए। जैसे कि कई कंपनीज में आपने देखा होगा कि हम स्टार्टअप्स भी होंगे, हम मेडिकल बेनिफिट्स नहीं देते, हम 10 एम्प्लॉयज हुए तो हम जाके पीएफ एप्लीकेबल करते हैं। वो भी हमें बहुत कन्विंस करना पड़ता है अपने डायरेक्टर्स को कि नहीं अब करना चाहिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट्स बेटर टू गिव देम बेनिफिट। बिलीव मी, मेरे खुद के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां हमने ईएसआईसी पीएफ एप्लीकेबल किया है, वहां पर ही एकदम से ही जो हमारा रिटेंशन रेट था, जो एम्प्लॉयज को रोकने का रेट था, वो कम हो गया। मतलब लोग छोड़ के जो जा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उनको दिखा कि नहीं अब हम पीएफ एप्लीकेबल हो गए हैं, ईएसआईसी एप्लीकेबल हो गए। इनफैक्ट हमारे एक ऑफिस बॉय था जिसको इस ईएसआईसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उसने वो चीज बेनिफिट लिया उस चीज का। आज उस कंपनी को 10 साल हो गए और वो बंदा वहां टिका ही हुआ है। These small parts for employees also helps them. Plus आज एक एम्प्लॉयर को भी ट्रस्ट हो गया कि हमने एक बंदे को इतना टाइम तक रिटेन करके रखा। तो आज कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ क्रूशियल चीजें भी होती हैं जो हम उससे शेयर करके या उसके थ्रू भिजवा सकते हैं, जो बहुत क्रूशियल होती है स्टार्टअप्स में, छोटी छोटी। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा ये आईटी सेगमेंट और आईटी सेक्टर के साथ अगर दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे सेक्टर के बारे में बात करूं, सो हाउ मच डिफरेंस यू फाइंड व्हेन यू टॉक अबाउट HR in IT sector and HR in other sectors? See, difference is just of sector. Roles, responsibilities, being a human person is always the same. But in terms of, if I talk about that other sectors, HR department, it's a basically expenses department. Of course. Because they are a major focus in sales, marketing, and all these things, right?
In IT, they are on a completely different environment. And sometimes in IT sector, it has been found that the revenue has been generated through dollars. So spending in money is quite easier. When you are earning in money and spending in money, then the balance sheet थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ा जाता है. Right. So how HR department plays a vital and crucial role in managing those human resources in other sectors as well, in your point of view? Being into HR, a crucial role is always to convince whatever we are doing is doing in their favor, in favors of employees. Because for employees, let it be like if I talk about manufacturing segment, if to be precise, if I talk about manufacturing segment, they earn, industries earn in rupees, they spend in rupees. So to retain them in terms of like IT सेक्टर से कंपेयर करके अगर हम किसी को वो करेंगे तो it's two different verticals, so वो एक justified you can say differences नहीं होगा. So क्या वहाँ के HR डिपार्टमेंट का स्ट्रगल ज्यादा IT से? स्ट्रगल दोनों के ही सेम है. Okay. बिकॉज कंपैरिजन जब तक अगर एम्प्लॉय करेगा, कंपैरिजन अगर है मार्केट में, तो स्ट्रगल तो सेम ही रहना है. स्ट्रगल बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, स्ट्रगल सेम होता है. बट येस, in some different industries we have to deal with certain labor class people as well. Here the person that, like in IT if we talk about, they are educated, more or less they are educated. Some might be graduate, some might be postgraduate, some might be engineers, some might be BCS and all. But in manufacturing, yes, they have to deal with labor, and for the labor, there is altogether different act and different rules. The rules are totally different for all, like skilled laborers. हमारी जो labor law है, उसमें skilled laborers के लिए अलग है, underprivileged laborers के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग ही है laws. So quite challenging होता है, but जहाँ comparison आ जाता है तो वहाँ difference आता है. And to be very honest, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जो ये कंपैरिजन आता है ना, वो हमेशा एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है. आप देखिएगा, जहां आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, मैनेजरियल लेवल पे आते हैं, वहां आपके चीजों को आप समेटने लगते हो, आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हो. Yes, true. कारण ये है, हमें ये लगता है कि अगर हमारी सैलरी X रुपीज है तो हम सामने वाले को क्यों बताएं. जहां वो सैलरी का कंपैरिजन बंद हो जाता है, वहां काफी सारी चीजें, काफी हद तक चीजें सुलझ जाती है. Yes. तो ये एक चैलेंज फिर भी एक चैलेंज भी होता है कि एचआर को पता नहीं चलता है कि सामने वाले एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चल रहा है. वो कब स्विच कर जाए, हमें एकदम जब उसके हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक रेजिग्नेशन मेल आता है, वो हमसे डिस्कस करने नहीं आएगा. तो वो जो एक फेज है कि अगर आपको एम्प्लॉयज के साथ गुडविल बनानी है, सो यू नीड टू बी इन गुड टर्म्स विद देम, यू नीड टू टेल देम. हाँ, बट जहां आपको स्ट्रिक्ट होना है वहां आपको स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा. गुड टर्म्स डजंट मीन कि आप उनको कंपनी के लॉस के अगेंस्ट जाने दोगे, कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाने दोगे. सो to build that repo, it requires a lot of effort. Let it be manufacturing, let it be pharma, let it be IT, let it be anything. So it requires lot of effort for us to gain their confidence, gain their trust, to gain initially. हमारी जो लड़ाई होती है ना, एचआर की जो लड़ाई होती है, सबसे पहले लड़ाई होती है डायरेक्टर्स का ट्रस्ट गेन करना. उसके बाद लड़ाई होती है फॉर टॉक अबाउट स्टार्टअप. उसके बाद लड़ाई होती है हमारी एम्प्लॉयज का ट्रस्ट गेन करना. फिर तीसरी लड़ाई आ रही है हमारे आपस में, डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ, भले अंदर कितने भी डिफरेंसेस हो, सामने दिखाना है कि वी आर अ डिपार्टमेंट, वी आर अ ग्रुप. यू कैन नॉट बाइफिकेशन, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एक का किसी को बोल के चले जाएं तो डिपार्टमेंट में एक डिस्प्यूट हो जाए. तो वो भी एक जो लीडरशिप क्वालिटीज में जो आता है, मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. राइट नाउ आई एम डीलिंग विद अ टीम ऑफ 6 people, जिसमें कि कुछ एडमिन में है, कुछ एचआरस में, रिक्रूटर्स हैं, एक मैनेजर है, एचआर मैनेजर, एक एडमिन मैनेजर है. सो जो रोल्स हमारे आ जाते हैं उस टाइम पे, जो एक लीडरशिप के रोल्स आते हैं, वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं. प्लस मैंने जब 2020 जब पैंडेमिक आया था, तब मैंने एक सेल्फ कम्युनिटी स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने सेल्फ रेज्ड कम्युनिटी थी. एक वन फाइन डे आई थॉट ऑफ कि क्या चैलेंजेस आते हैं. मैं थोड़ा सा पढ़ने में बिलीव करती हूँ, मैं थोड़ा पढ़ती रहती हूँ चीजों को. क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ वुमन, क्योंकि मैं अपनी थोड़ा खाली समय था मेरे पास, बिकॉज पैंडेमिक था तो खाली टाइम था. मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए.
जहां मैंने वो सोचना शुरू किया, फिर मेरा कंपैरिजन शुरू हुआ। जो बात मैं आपको भी कंपैरिजन की कह रही थी ना, Yes. वही मेरा मेल एम्प्लॉय से एज अ फीमेल एम्प्लॉय कंपैरिजन शुरू हुआ। एग्जाम्पल सेट होते गए ऑटोमेटिकली, यू नो, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती गई, सोचती गई मैं चीजों को लेके। देन आई रियलाइज वन फाइन डे दैट बीइंग अ वुमन इट माइट सीम क्वाइट इजी टू गेट अ जॉब। इंडस्ट्री में कि आप देखें अगर चैलेंजेस, हम मतलब अगर कंपैरिजन में बात करें तो हम लड़कियों को क्वाइट इजीली काफी सारे रोल्स मिल जाते हैं। ऐसा मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, बोलते हैं लोग, मेल एम्प्लॉयज कंप्लेन भी करते हैं, बट टू सस्टेन इन दैट रोल, टू ग्रो इन दैट रोल, दैट इज मोर चैलेंजिंग। ट्रू। India being a male dominating society, sorry, मतलब don't take it offensive at all. It's being a male dominating society, it is quite challenging for us as a female to survive. सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, आपकी शादी हो रही है, आप रिलोकेट हो रहे हो, प्लस बेबीज हो रहे हैं आफ्टर मैटरनिटी ब्रेक। Those are the challenges when a woman needs to survive, because उस टाइम पे अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो कि आपके जो चेंज आ रहे हैं उस चीज को सर्वाइव कर पाओगे, तो आप कॉन्फिडेंटली अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। टू ग्रो योर करियर, टू बी, आई बीइंग अ करियर ओरिएंटेड वुमन, आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ कि नो मैटर व्हाट, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जैसे जब शादी होने वाली थी तो काफी सारी बातें होती है, इट्स अ लव मैरिज, तो हम लोग काफी, यू नो, इंसान बहुत सोच समझ के बातें करता है कि क्या मेरा आगे का फ्यूचर रहने वाला है। एंड बीइंग अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बिकॉज पेरेंट्स ने इतना कॉन्फिडेंटली रेज किया है कि उन्हें जरूरत नहीं है कि उनकी बेटी बैठे। मुझे हमेशा यही सिखाया गया। मेरी शादी हो रही थी, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी, मैंने कुछ लीव्स मांगी बिकॉज मेरे को तैयारियां खुद करनी थी, न्यूक्लियर फैमिली है, खुद तैयारियां करनी थी। मम्मा प्रिंसिपल थी स्कूल में, डैड भी वर्किंग थे, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी हु कैन, कौन करेगा, वो भी एज हो रही है उनकी भी, वो लोग भी कहाँ से करेंगे। तो वो तैयारी करने के लिए ब्रेक मांगा, मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं था जॉब छोड़ने के अलावा। सो वो सब चीजें रिकॉल होती गई मुझे। जब मैं जॉब छोड़ रही थी, मेरे डैड ने बोला, बेटा कुछ हो जाए ना, लड़कियों की शादी हो जाए ना, तो भी लड़कियों को अर्न करना चाहिए, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। सो वो बात मुझे कहीं ना कहीं क्लिक करती रही। जैसे ही मेरी शादी हुई, मैंने फिर से इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया। फिर एक, वो मुझे आपको बता रही थी कि मेरे लाइफ में एक ट्विस्ट आया था, जीरो, क्योंकि हम लड़कियां जीरो पे आ जाते हैं, मतलब नॉट, कोई आप जॉब छोड़ते हैं ना, वो इंसान वापस वैसे ही जीरो पे आ जाता है। उसको वापस से एक स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपके पास करियर हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ता है हम सर्विस इंडस्ट्री वालों को, कि हमें वापस से सब स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, रिज्यूम्स अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन जो नेगोशिएशन का पार्ट आता है कि अगर यू आर वर्थ 2 रुपीज, तो आपको 1 रुपी में क्यों रखा जाता है। जो 1 रुपी का ब्रेक का जस्टिफिकेशन लड़कियों को देना पड़ता है, वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लड़कियां इंटरव्यू देने जाएंगी। अगर आप मैरिड हो, मैरिड नहीं हो तो शादी कब कर रहे हो, ठीक है, शादी हो गई है, ठीक है, मैरिड वुमन गई है, बच्चे कब कर रहे हो, फिर आप ब्रेक लोगे, हम कैसे ऑफ आपको रख ले एक लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर किसी को भी रखना चाहता है, तो वो कभी भी एम्प्लॉयर ये नहीं सोचता कि हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही देखता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। क्योंकि एक ट्रेनिंग कॉस्ट प्लस जो आपका 3 मंथ्स का जो प्रोबेशन, 6 मंथ्स का प्रोबेशन होता है, उसमें ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, आपका टाइम भी लगता है, एम्प्लॉय भी टाइम देता है, एम्प्लॉयर भी टाइम देता है, हर चीज होती है। सो ये जो मेरे साथ फेज आया, तो मैंने वापस से जॉब्स के लिए जो स्टार्ट किया, तब वो कम्युनिटी डेवलप करने का उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था, बट उस टाइम पे ना इतना नेटवर्किंग होता नहीं था। तो जब पेंडेमिक आया, फिर जब ऑलरेडी लिंक्डइन लोकल से एसोसिएटेड थी, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट सेल्फ कम्युनिटी, देखते हैं हम क्या वुमेन्स को चैलेंजेस आते हैं। सो ऐसे एक लिंक्डइन पे एक दिन वन फाइन डे एक मैसेज डाल दिया कि द वुमेन, लाइक द लेडीज हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर करियर, काइंडली कनेक्ट विद मी, वी माइट बी बेनिफिशियल विद द कनेक्शन, किसी ना किसी का कुछ तो फायदा होगा। सो जब मुझे वो मैसेजेस आना शुरू हुए, देन आई थॉट लेट्स वर्क टुवर्ड्स दिस challenges, special cause you can say, the challenges that we are facing. Then I started. मेरा आज भी यही टारगेट होता है कि मैं, ठीक है, if you are worthy enough for this role, I will definitely give you this role. मैं आज भी लेडीज को कनेक्ट करती हूँ कि भाई आपको करियर रीस्टार्ट करना है, कनेक्ट विद मी, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन एट ऑल, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ह्यूमन काइंड नेचर है,
हम खाली खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर होता है, जहां खाली बैठे वहां उल्टा सोचने लगते हैं, वही चीजें नेगेटिव होना शुरू हो जाती है. So I have recently been rewarded with this supporting women empowerment. There is a community called World HRD Congress. They are into, like, you know, they recognize the females' work. They recognize many of the leadership roles on the leadership role. And that particular time when they were nominating me, at that particular time I thought, yes, Annie, you have done something for the industry now. You can get rewarded. So do you consider that that was one of your great achievement as of now? It was a great achievement for me. Yes, I can say that. So for this women empowerment, I have recently received 2 awards. One with HRD, one with iRise Association. It was held with Begum of Bhopal's. So they awarded me. Somehow, and that was the moment when I felt, yes, Annie, what your mother taught you to be confident, to be, like, you know, do something for human nature, humankind, humanity, you are doing it. So now my roles towards my career and towards the humanity is to give more and more employment to the person who is worthy enough for this role, especially the women who are, like, you know, facing the challenges to grow. Me being into industry since last 19 years, I've faced many challenges, many biasness also sometimes I have faced. It's a bitter truth of the industry. Many biasness also I have faced. But yes, बुरी चीजें ही आती है तब आप लेसन सीखते हो. True. हर चीज अगर अच्छी चलती रहेगी तो आपको उस चीज की वैल्यू नहीं पता होगी. Certain financial challenges, certain gender challenges, many things have been faced. So, but yes, it has taught me a lot. Tough time has taught me a lot. And yes, I always wanted to work towards the mankind, and that's what I'm doing. Recently, काफी सारे networking groups से मैं associated हो चुकी हूँ. One of the group is like IHRA, जिसमें हम कोशिश यही करते हैं, हम जितना हो सके HR नेटवर्किंग फैलाएं. कोशिश यही करें कि जितने भी जैसे कई बच्चे हैं, हर किसी को कैंपस से प्लेसमेंट नहीं मिलता. आज कॉलेज में एडमिशन्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं. वन बैच में ही आप अगर देखें 50+ होते हैं कैंडिडेट्स, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं. हर सारी कंपनीज पूरे बैच को नहीं उठा के लेके जाती. कंपनीज जाएंगी कैंपस के लिए, 2 बच्चे लेंगी, 3 बच्चे लेंगी. So we as a, like, you know, IHR associated people, we try to, through the networking, we try to get them placed somehow. Okay. And that is not at all chargeable. We do it free of course, as for the human, like, you know, humanity. And the recruitment part, as अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हमें पता है कि कौन सा कैंडिडेट हम कहाँ फिट इन कर सकते हैं. We can not be 100% right, but yes, 80 times out of 100 we are right. Okay. They are fruitful for the role, we can fit it. एक चीज मुझे आपसे जानना है. In last 19 years you have been a roller coaster ride. Yes. In HR department. ये 19 years में ये शिफ्ट आप कैसे देखते हैं? Because in today's time the young generation have very less patience. अगर वो 1 साल भी अगर नौकरी कर ले तो छटपटाते हैं कि 1 साल हो गया. पहले जब आपने शुरू किए होंगे इस रोल पे, तब मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्टली. तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ये जो चर्निंग है और जो एट्रिशन रेट जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हाउ यू कोप अप विद दैट? Sustaining youth is a challenge, definitely yes, because money दिखता है. Yes. The short term gain दिखता है, and that is what the startups are made for, to be very honest. When they see and हुआ भी है पेंडेमिक के टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मून लाइटनिंग सिस्टम में फॉलो हुआ था वो किस लिए हुआ था? इसलिए ही हुआ था बिकॉज वर्क इतना था, लोग कम थे, एक्सपोजर इतना मिल रहा था लोगों को. दे वर डूइंग डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, 3 जगह से जॉब कर रहे थे. टू सस्टेनिंग यूथ इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, जो यूथ का अट्रिशन रेट आ रहा है, whenever they see the benefit in the company. आजकल हर चीज है ना, आजकल like you can think of this also, that जो चीजें ग्लिटरी होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं. yes है ना, उनके यंग crowd को. yes, but they don't understand all that glitter is not gold. What all glitter is not at all gold. They cannot think of long term run if they have certain responsibilities. See, if you have certain responsibilities, you will definitely be stick up.
Yes. स्टक अप हो गए आप चीजों को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आज ऐसा हो गया तो कल क्या करेंगे, खाएंगे कैसे। आजकल तो देखिए वो बात ही नहीं रही जो हम लोग के चैलेंजेस में बात ही, हम लोग को कोई करियर गाइड करने वाला था ही नहीं। True, very true. आजकल लोगों को पता है कि एचआर स्ट्रीम में अगर जाना है तो क्या कोर्स पढ़ना है, क्या पढ़ाई करनी है। हम लोग को नहीं होता था, हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, बस यही सब चीजें होती थी। ज्यादा चीजें ऑप्शन ही नहीं होते थे। या फिर अगर टीचर बनना है तो आप बीकॉम कर लो, बीसीए कर लो, यही कर लो। बट आजकल के बच्चों में एक बहुत अच्छी बात ये है कि दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट देयर करियर, व्हाट दे वांट। टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे खुद फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अभी शायद 20s में होंगे, 25, 26, 27 में होंगे। दे हैव देयर गोल्स कि हमें 35 पे रिटायर होना है, एंड आई एम सिटिंग एट 37, आई एम स्टिल प्लानिंग टू अर्न मोर। सो ये यंग जनरेशन की जो एट्रिशन रेट है, इसको रोकने के लिए कोई पॉसिबल उपाय है कि इट्स जस्ट ए लक कि आपने कुछ उनको फ्रीबीज देके या कुछ गुडीज देके आपने उनको रोक लिया? Freebies and goodies always work. It works. But yes, the kind of environment they are looking out for, the thought process of the company is definitely a big yes for them. अगर आज हमारा thought process कहते हैं टाइम के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो जो टाइम हमें पीछे छोड़ के चला जाएगा। सो जो यूथ है, जो आज का नया यूथ है, वो नई जनरेशन जेन जी बोल लो आप उसको, जो जेड जनरेशन है, वो अगर हमारे थॉट प्रोसेस उनसे साथ मैच हो जाते तो somehow we can retain them. ये जेन जी का मनी छोड़ के कोई और दूसरा मुद्दा होता है रिटेन होने के लिए? बहुत सारे होते हैं, लाइक कल्चर, एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा होते हैं। कल्चर, मनी ठीक है, एक डेफिनेटली बेनिफिट होता ही है, मनी, पैसा आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। एंड इट इज ए नाउडेज ए रेगुलर फैशन कि आपके पास एक ऑफर लेटर का टुकड़ा आके दूसरी कंपनी में पैनल दिखा के अगर आप मैच कर दे तो रुक जाते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, हम एचआर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और इनफैक्ट उनको वो ऑफर देने के बाद भी, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी है, मैं दूसरी कंपनी हूँ, आपका कैंडिडेट मेरे पास आया कि मुझे इतना ऑफर देखो है, आप दे रहे हो क्या इतना, तो अगर ठीक है मैंने उससे अगर एक्स रुपीज बढ़ा के भी उनको दे दिया, सो वो वापस अपनी कंपनी के पास जाएंगे कि देखो मेरे पास ये ऑफर है, तो वो वापस वही रिटेन हो जाते हैं। तो क्या क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय में भी ये बार्गेनिंग होता है? होती है, ये जो नेगोशिएशन है वो होती है। सो इन सब नेगोशिएशन के बीच में जो वर्थ थी, जो अभी आप जैसे कह रहे थे कि 3 अगर डिपार्टमेंट में गलत एम्प्लॉय बैठे तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो इन चीजों के पीछे जो लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं, जो जैसे जो कंपनी के गुडविल में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। सो फिर वो भी उसी भागादौड़ी में, उसी सर्कल में आने लग जाते हैं कि यार। नाउ इफ आई आस्क यू फ्यू डेटास, देन अभी प्रेजेंटली जो भी ग्रुप्स आप हैंडल कर रहे हैं वहां पे एट्रिशन रेट क्या है? जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी थी, तब उसका कंपनी का एट्रिशन रेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कंपनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी गुड। 40 इयर्स, काफी पुरानी कंपनी है, बट अभी उनका 12 इयर्स पहले एक आईटी विंग ओपन हुआ है जिसको मैंने हेड कर रही हूँ। सो उस कंपनी में अट्रिशन रेट, इफ आई टॉक अबाउट यूथ का अट्रिशन रेट बहुत है, बट जो लॉयल एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, दे आर वेरी गुड लॉयल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका अट्रिशन रेट इज 0, एंड आई कैन प्राउडली से इट्स 0। कुछ कंपनीज के जो दूसरी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें अट्रिशन रेट मैं कोशिश करके मैंने अभी 3% लेकर आई हूँ, बट 3% If I talk also about that IT sector as a whole, then IT sector का यूथ का एट्रिशन रेट क्या है? you cannot even imagine now. It is a very big, vast, like you can say, out of 100 youth, 60 youths don't stay. God. And this much people are there to fill that gap? Yes. As I said, jobs भी बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं. My God. It's a competitive world we are living in. लोगों में इतने स्किल्स हैं, स्किल्स इतने ज्यादा हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं से उनको जॉब मिल जाती है। इसीलिए स्टार्टअप का ग्रोथ हुई है। अगर आप देखें, इंदौर एकदम से बूम स्टार्टअप की वजह से ही आया है। बड़ी कंपनीज तो बाद में जो अभी इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, अभी
जो G20 के इवेंट्स हुए हैं उसके बाद काफी 5 साल से शायद इंदौर में आईटी कंपनीज ने, बड़ी कंपनीज ने आना शुरू किया। 5 साल पहले अगर आप देखें, उसके Yes. पहले कुछ नहीं था कुछ इंदौर नहीं में। था, yeah. कंपनीज थी तो इंदौर बेस्ड कंपनी थी जो कि स्टार्टअप से शुरू होके बड़ी हुई थी। आज भी कई ऐसे सारे स्टार्टअप्स हैं इंदौर में जिनको IBM ने एक्वायर कर लिया है। Now I have few questions regarding that startups. Startups जब कोई शुरू करते हैं वो स्क्रैच से शुरू होता है, वो खुद ही HR होता है, खुद ही ऑफिस बॉय होता है, खुद ही मालिक होता है, खुद ही एडमिन होते हैं। यस, खुद ही सब करते हैं। So what should be the parameters to be considered when you are entering into this startup world? कि how much it is important to create departments and how much it is important to stick to the philosophy of the Yes. company to sustain for a longer duration of time. See, till the time, it's my suggestion to all the directors whom I've worked with in startups. Till the time you will not shred off your roles, you will not be able to grow. In order to grow, you need to leave certain burden behind because you have already made certain departments. Yes. Have faith, have trust. If you do not trust that person, then change the person. But you need to shred off the roles in order to Yes. see long-term goals. In order to run with the time, you need to shred off the, like, you know, your burdens. अगर आपका इंटरफेरेंस, जो अभी आप कह रहे थे, जो इंटरफेरेंस अगर हर चीज में रहेगा तो आप उसी इंटरफेरेंस में ही घुसे रहोगे। आपका दिमाग वही चलता रहेगा, आपका दिमाग सिर्फ वही चलता रहेगा कि आज ये बंदा लेट आया तो क्यों, और HR ने क्यों कुछ नहीं बोला। Let HR decide that. Let HR decide it. और HR भी ऐसा नहीं है कि HR से वो बात आप तक नहीं आएगी। HR बिना आपके अप्रूवल के कोई चीजें नहीं करेगी, because we are answerable to employees, we are answerable to employer also. True. So it's better you focus on business, bring more business, I'll bring more people. So this is the first parameter, that you should share your few Definitely. things, few departments. Definitely. And second, what should be? Second is to run along with the time. Okay. If you see, many startups are in Indore which are started by the youth itself. So people are more fascinated towards working those startup rather than working with the startup with the elder directors. Okay. Because there must be some cultural shift. Yes, and cultural differences. shift, cultural differences. Plus the engagement, employee engagement that we talk about. If employee engagement is a part of your organization, believe me, you have already won the race by 50%. If you talk about employee engagement, अगर आज हमारा एम्प्लॉय एक मूड ऑफ होके ऑफिस आए और ऑफिस से वही मूड ऑफ होके जाए, सो नेक्स्ट डे उसका आने का मन नहीं करेगा ऑफिस में। कुछ दिन चलेगी ये चीज, थोड़े टाइम बाद बोलेगा यार मेरे को मन ही नहीं करता ऑफिस जाने का, लेट्स रिजाइन, दूसरी कंपनी देखता हूँ। आज की तारीख में एक छोटी सी बात भी बहुत मैटर करता है यूथ में, कि ये जो आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज यूथ इज इन सोशल मीडिया टुडे, है ना, तो ये शो शाह जो है वो ज्यादा दिखता है। yes. तो ये मेरी कंपनी यहाँ पे लेके जाता है, तुम्हारी कंपनी तो यहीं पे लेके जाते हैं, तो वहीं वो डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। हाँ, देन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि हमें ऐसी जगह क्यों लेके नहीं जाया जाता है। और कभी कभी तो ये भी पाया जाता है कि जो अच्छी जगह लेके जा रहे हैं वहां पे भी लोग शिफ्ट कर जाते हैं सिर्फ वही देख के, क्योंकि वो सुपरफिशियली दिख रहा है कि वहां पे बहुत एंजॉयमेंट है, वेरी ट्रू, अंदर के कल्चर नहीं वेरी पता, ट्रू, वेरी बट सुपरफिशियल इमेज देख के दे ट्राई टू शिफ्ट। ये एक चैलेंज है जो मैं अभी अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ भी फेस कर रही हूँ। हमारे ऑफिस में बहुत एंगेजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, बट हम सोशली, हमारा जो एम्प्लॉयर है इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता कि सोशली इन सब चीजों को दिखाए। सो मैं उनको यही समझा रही थी, अभी ही इज ऑफ माई एज ओनली, यू कैन से 1-2 साल प्लस माइनस होंगे, मैं उनको यही समझा रही थी कि वी हैव टू गेट इनटू द ट्रेंड, जो कि एक HR डिपार्टमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है टैलेंट को एंगेज करने में, and to retain those. And yes, retain तो already है because we are doing it. It's not that we are not doing it. We are doing it. But to show off, we need to, like, you know, be more active towards showing it off. You attract people from yes, other it is not about attracting. See, एक छोटा सा वर्ड है हमारी हिंदी लैंग्वेज में, जो दिखता है वही दिखता है। आजकल To be very honest. Yes. सारी चीजें सोशली अवेलेबल हैं। अभी आई हैव बीन रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो ये मेरे साथ ही, मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं एक कम्युनिटी से एसोसिएटेड हूँ जिसमें वुमेन्स हैं, कुछ मदर्स भी हैं। सो मुझे मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम अ न्यू मदर, आई डोंट नो
सो इट्स बेटर टू आस्क. अब मदर इन लॉ से पूछा तो यूज दिस यूज दैट, तो वो चीजें तो ऑलरेडी मैं कर ही रही थी, बट नई चीज सॉर्ट आउट हो रही थी. सो मैंने ग्रुप में पूछा, तो मुझे आंसर आया कि ये क्रीम है, इम्पोर्टेड है, मंगा लीजिए, बहुत असर होगी. बिकॉज स्किन में कुछ ऐसी एलर्जी हो गई थी जिसके सोल्यूशन घी लगाने से या डॉक्टर्स की ऑइंटमेंट लगाने से, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अवॉइड कर लूँ दवाइयां लगाने से, बेटर है कि कुछ ऐसे यूज कर लूँ जो नॉन मेडिकेटेड हो. बिकॉज हम अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि कुछ प्रोटेक्ट कर लें जितना इन सब चीजों से, तो अच्छा है. सो उस सोशल मीडिया, उस मैसेज से मैंने वो क्रीम ढूंढना शुरू किया. वो क्रीम मुझे इंडिया में कहीं दिख ही नहीं रही है. माई ब्रदर इज इन यूएस, मैंने उसको कनेक्ट किया. उसको कहते हैं मेरे को तो आने में टाइम है, एक क्रीम भेजूंगा तो उसका कोरियर चार्ज उस क्रीम से 10 times मोर होगा. सो इट्स बेटर कि तो ढूंढ कहाँ मिल सकते. तो समहाउ आई फाउंड कि वो क्रीम एक इंदौर में एक आउटलेट है जो बाहर से इंपोर्ट करके मंगा के देता है. तो मैं उससे पिछले 15 दिन से टच में हूँ कि प्लीज आप मुझे मंगा दो, प्लीज आप मुझे मंगा दो. सो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि वो मुझे पता चल गया कि इस आउटलेट में अवेलेबल हो सकती है, तो मैं उससे कनेक्ट करके उसके टच बेस में हूँ कि हाँ मुझे मंगा दीजिए. सो समहाउ आई गॉट दैट प्रोडक्ट. नाउ आई एम सेटिस्फाइड. हालांकि वो यूज करी है मैंने, कितना फ्रूटफुल है मुझे नहीं पता, बट यस आई एम सेटिस्फाइड कि आई गॉट दैट प्रोडक्ट. मेरी जो मैंने फाइट करी प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, वो मुझे मिल गया. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ माय लाइफ व्हिच आई एम गोइंग थ्रू. बट यस, सोशल मीडिया से अगर आप यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हो, सो दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज सोशल मीडिया. इवन लिंक्डइन, आई कैन से लिंक्डइन ऑल्सो पोर्ट्रे मेनी थिंग्स. प्लस सोशल मीडिया के अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जो एक ब्रांडिंग, यू कैन से, जो अभी हम ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांडिंग, नॉट पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांडिंग जो हम बात कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आज भले मेरी कंपनी का सोशल मीडिया अपीयरेंस नहीं है, बट जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी, मैंने 10 जगह पहले पता किया. हम भी मतलब यू नो वेरिफिकेशन करते हैं, बैकग्राउंड वेरीफाई करते हैं. जैसे एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी में ज्वाइन होता है तो हम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं कि वो जेन्युइन है, नहीं है, कुछ पुलिस केसेस तो नहीं है. बिकॉज कोई भी ट्रबल लेना नहीं चाहता आज की डेट में. इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कुछ ट्रबल को फाइट आउट करे. सो जैसे एम्प्लॉय भी कंपनी ज्वाइन करता है तो वो भी कंपनी के बारे में इंक्वायर करता है, काफी कुछ इंक्वायर करता है. सो जो आपका अपना एम्प्लॉय है, जब अगर वो आपको छोड़ के भी जा रहा है, अगर आपकी इमेज अगर गुड नोट पे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉय जो है गुड नोट पे जाए. रीजन बीइंग कि वो जाके बाहर ब्रांडिंग करेगा, जो कि आप सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते. जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, योर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज योर ब्रांड. ट्रू. जो एक सोशल मीडिया पे हम नहीं कर सकते, वो माउथ पब्लिसिटी, जो पावर ऑफ वर्ड्स है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो मेरा हमेशा से मेरा 10% से भी कम रेट होगा जो मैं एम्प्लॉयज को नाखुश करके भेजती हूँ. मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज मेरे हाथ से एग्जिट हो रहे हैं वो सेटिस्फाइड होके एग्जिट हो, ना कि किसी ग्रेवियंसेस को ग्रजेस लेके जाएं. क्योंकि देखिए इंदौर मार्केट है अभी ग्रोइंग. हमें कहीं ना कहीं, हमें यहाँ से पीतमपुर भी जाना होगा तो सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम. कहीं ना कहीं हम आपस में टकरा ही जाते हैं. आज आप और मैं ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कितने कॉमन नेटवर्क में हैं, तो भी हमारा इंटरेक्शन नहीं है, बट समहाउ द अर्थ इज राउंड, हम मिले, बात हुई हमारी, कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है. सो आज आई एम इनटू एचआर इंडस्ट्री में, अगर किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगी, अगर वो एम्प्लॉय को मुझे अगर हायर करना होगा, या मैं अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से उनके कोई एम्प्लॉय को हायर करना होगा, तो मैं 10 बार सोचूंगी कि यार मैं गुड नोट पे छोड़ के आई हूँ, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती. सेम ऐसे ही एम्प्लॉय, अगर दूसरा एम्प्लॉय छोड़ के गया है मेरी कंपनी से, सो अगर उसने देखा है कि मैं कहीं शिफ्ट हुई हूँ और उसको कहीं ज्वाइन करना है, वो ढूंढ रहे जॉब, तो पहले मुझे टच करेगा कि मैम आपके साथ एक गुड नोट पे एंड हुआ था, अगर आप किसी अच्छी कंपनी, ऐसी कंपनी में अगर मेरे लिए रोल्स हैं तो आप मुझे प्लीज कनेक्ट करो. सो ये एक जो बहुत सोशल मीडिया का पावर जो कह रहे हैं, ये एक एम्प्लॉय ब्रांडिंग की पावर भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. Now, if I talk about being a female HR individual, how much it is difficult to manage your professional hassle with your personal hassle? I remember, yes, it is. I cannot say it is difficult. With the support of your family, you do it. I'm blessed enough that I got good in-laws, good supporting husband, and plus my parents are also here. Yes. So as I told you that I'm a recently like blessed mother. So what I do follow is, if I talk about my my life, what I do follow is I make sure
that I pay proper attention towards the work and towards the family also. Not like अगर एक काम करने के चक्कर में दूसरी चीज neglect हो जाए तो that will not make you happy. Same, अगर आप घर से कुछ काम ऐसा करके आ रहे हो जो आपका मूड ऑफ है ना, आप ऑफिस में भी फिर वैसा ही परफॉर्म करोगे. वही ऑफिस में अगर मुझे स्ट्रेस है, किसी चीज का इशू है, सो इट्स अगर वो मैं घर लेके जाऊंगी तो फैमिली इफेक्ट होगी. दोनों चीजें हैं. हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना ही बहुत ज्यादा जरूरी है. बीइंग अ वुमेन हमारे में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से. आई डोंट नो कहाँ से आती हैं. इन माई मैटर्निटी आई स्टिल रिमेम्बर मैंने 10 आवर्स वर्क किया विद फुल, लाइक मैं फुल मैटर्निटी ऑफिस गई हूँ. द डे आई डिलीवर्ड अ बेबी, बस उस दिन से मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी. मैंने वो कंपनी रिजाइन कर दी थी. बट मैंने उनको मेक श्योर किया था कि मैं फुल टाइम जाऊं ऑफिस. तो समहाउ कुछ हमारे टर्म्स नहीं ठीक बैठे, तो वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी. चैलेंजेस थे, तो मैंने मेक श्योर किया था कि मैं बिजी रहूं. सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी था, प्लस ऑफिस का सपोर्ट भी बहुत जरूरी था. एंड मैं एक और मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन से एक फैक्टर स्टार्ट किया था, एक छोटा सा लाइक जोन स्टार्ट किया था, एंगर फ्री जोन. ओके. ऑफिस के दरवाजे के बाहर, एंट्रेंस के बाहर मैंने लिख दिया, मतलब पोस्टर्स लगवाए थे हमने कि दिस इज द एंगर फ्री जोन, प्लीज लीव योर बर्डन्स बिहाइंड एंड कम इनसाइड. बिकॉज अगर एक एम्प्लॉय शांति से खुश होकर अगर ऑफिस आएगा तो वो प्रोडक्टिव उतना ही ज्यादा रहेगा. कभी कभी वो एक नोट भी बहुत इम्पैक्ट देता है, एक छोटा सा थॉट भी बहुत इम्पैक्ट, गिविंग यू अ रिमाइंडर कि ये है. ये थॉट की बात से मुझे कहाँ से मैंने सीखी, मैं आपको वही बताती हूँ. वेब दुनिया का मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी. वेब दुनिया में एक एचआर, हमारे जो एचआर डिपार्टमेंट में एक रूल था, सारे लोग जो भी 10 साढ़े 10 बजे जो भी ऑफिस का टाइम होता था, इंटरनल एक मैसेंजर चलता था, आईपी मैसेंजर. उस टाइम पे तो ऑर्कुट का जमाना था, ऑर्कुट फेसबुक का जमाना था. तो ऑर्कुट उसमें एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है आईपी मैसेंजर. आज भी कई सारी कंपनीज उस चीज को फॉलो करती हैं, उसको यूज करती हैं. सो वो जो भी उस लोकल आईपी से कनेक्टेड होते हैं उन सबके पास वो मैसेज डिलीवर हो जाता है. क्लोज सर्किट मैसेज होते हैं. सो एचआर डिपार्टमेंट क्या करता था, एचआर डिपार्टमेंट का ये प्रोसीजर हम फॉलो करते थे कि हम थॉट ऑफ द डे भेजते थे. करेक्ट 10:45 पे वो मैसेज सबके विंडो में पॉपअप करता था. थॉटफुली होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता था. मंथ की स्टार्टिंग में, मंथ खत्म होने से पहले हमें लिस्ट रेडी रखनी पड़ती थी कि इस डे को ये ब्रॉडकास्ट होगा, इस डे को ये ब्रॉडकास्ट होगा. तो हम एक वो थॉट सर्कुलेट करवाते थे. जहां वो थॉट सर्कुलेट होता था, जो कुछ लोगों का मूड खराब भी तो उसको पढ़ के काफी कुछ सबसाइड हो जाता था. That was another way to get the anger out. To get the anger out. क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं चलन में था. शुरुआत ही हुई थी ऑर्कुट से, डिटेलिंग शुरू ही हुई थी, यू कैन से. एंड्रॉइड नया आया था मार्केट में, छोटे छोटे फोन आते थे एंड्रॉइड के, या फिर वो मोटोरोला के बड़े फोन आते थे. जो स्मार्टफोन्स अभी इतने सारे नहीं आते थे. सो ये एक मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट किया था. आज भी मैं रैंडमली, मेरी आदत है, मैं ऑफिस में वॉक करने के लिए, लाइक एम्प्लॉयज को देखने के लिए चली जाती हूँ. जाऊंगी सबकी सीट पे, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जिस टाइम पे जा रही हूँ जो भी ग्रीट करूंगी उनको. किसी का भी मूड ऑफ दिखेगा तो मैं थोड़ी देर बाद उसको ऑफिस कैबिन से फोन करके बुला लेती हूँ कि आओ, थोड़ा चाय मंगाती हूँ, कॉफी मंगाती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ, टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. जरूरी नहीं है कि ऑफिस की वजह से वो परेशान हो सकता है कई परेशानियां घर कैरी करके आ रहे हूँ. सो बात करके, एंगेज करके उनको जितना हो सकता है स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करते हैं. That kind of counseling is missing somehow in professional life. Yes. Because here everyone is on race. और सब किसी का कुर्सी तोड़ के अपना कुर्सी जमाना चाहते हैं. True. So in that scenario, counseling and personal touch will always work. So being a human person, human resource person, you have to be a human people. If you are not human people, you cannot survive in this run for a longer. To lead something, to lead a team, to lead a department, or to lead a company, you always need to be open to discuss. That's what I say. आज जितना मैं अप्रोचेबल होंगी उतना मेरा एम्प्लॉय मुझ तक आने की कोशिश करेगा. एमएनसीज में ये फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग होता है. डिपार्टमेंट ही बन के रह जाता है. डरते हैं लोग एचआर से बात करने के लिए. सिर्फ मेल्स पे बात होती है क्योंकि कभी शक्ल देखी नहीं है, चेहरे देखे नहीं है. ये एक स्टार्टअप का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको लोग नाम से जानते हैं, शक्ल से जानते हैं. कल ही मैं यहाँ आने से पहले मैं
किसी आउटलेट पे गई हुई थी कुछ शॉप करने के लिए. सो मेरा पुराना एम्प्लॉय मुझे दिखा. So, मैंने अपनी कार रोकी, मैंने हाय, उसने मुझे देखा नहीं था, मैंने रोकी कार, विंडो नीचे की, मैंने उसको हाई वेव किया तो वो दौड़ के आया. मैम गुड टू सी यू. मतलब इतने टाइम बाद मैंने उससे पूछा शैल आई ड्रॉप यू समवेयर, आपको कहीं जाना है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ अगर वो रास्ते में आ रहा है तो. नहीं मैम. कहते बहुत अच्छा लगा आपको देख के, अभी ये कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. देन वी सैट आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी पी एंड देन वी पार्टेड आवर वेज. सो एक जो टच आप मैंने वही बोला, इंदौर मार्केट इतना छोटा है कि अगर आप जो टच एक इम्पैक्ट छोड़ देते हो लोगों के ऊपर, वो आपकी ब्रांडिंग बन जाती है. सो टू गेट टू से बाय बाय टू योर एम्प्लॉय विद अ गुड नोट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एनी कंपनी. ठीक है, एंड गलत हो सकता है, कुछ एम्प्लॉय की गलती हो, कुछ एम्प्लॉयर की गलती है. आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीबडी, बट यस उसको गुड नोट पे एंड करके खत्म करना बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा भी होता है. इट गिव्स पीस टू एम्प्लॉयर ऑल्सो. एक एम्प्लॉय को भी पीस देता है, मेंटली पीस देता है. नहीं तो अगर आप देखें जितना मनी का फ्लो बढ़ता जा रहा है इस सभी इंडस्ट्रीज में, आज आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां के भी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी हाइट पे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, क्योंकि सब चीजें ग्रो हो रही हैं. जहां एक कोई भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आईटी ग्रो कर रहा है तो बाकी इंडस्ट्रीज डाउन है. सभी मार्केट इवेंचुअली फ्लरिश करता है. आज अगर सैनिटाइजर्स बिके तो सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्रियां भी बड़ी खुली. हर गली में आपको शायद कोविड के टाइम पे दिखी होंगी, मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं. सो हर चीज ग्रो करती है इवेंचुअली. इन्हीं सब चीजों के पीछे जो सोशल मीडिया की पावर जो आप कह रहे हैं, अगर वो ब्रांडिंग सोशल मीडिया ने उसकी ब्रांडिंग करी तो आईटी ग्रो करी मैन्युफैक्चरिंग से. सो दे आर लिंक अप. आज हम सेगमेंट चेंज भी करेंगे तो कहीं ना कहीं इंदौर मार्केट में हम इतने छोटे सर्कल में बैठे हुए हैं अभी कि हमें एक दूसरे का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने में या एक गुड नोट बैड नोट लेने में टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी चल जाएगा. आप वेरीफाई करना चाहें आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं किसी के भी बारे में. सो ये एक ब्रांडिंग, मेरा तो हर कंपनीज को यही सजेशन रहता है जहां भी मैं जाती हूँ कि आप एक गुड नोट, अच्छे नोट पे, और क्या जा रहा है, हम 10 to 9 मतलब जॉब ही कर रहे हैं ना, 10 to 7 जॉब कर रहे हैं, 8 आवर्स अपने यहाँ दे रहे हैं आपको. सो सेकेंड होम ही हो गया हमारे लिए. फर्स्ट होम बोल सकते हैं क्योंकि सेकेंड होम तो आजकल घर हो गया है, ऑफिस में ही काम इतना हो जाता है कि वो फर्स्ट टर्म हो गया. तो अगर हम आपस में ही अच्छे से रहेंगे तो हम काफी कुछ ग्रो कर पाएंगे. और एक अकेला एक बोट को नहीं खींच सकता, नैया पार करने के लिए चाहिए होते हैं दूसरे लोग, दूसरे लोग भी चाहिए होते हैं. सो वन अलोन मैन कैन नॉट बी, वन मैन आर्मी आप कभी भी नहीं चला पाओगे चीजों को. I need to have some your personal perspective on something related to personal life. And in today's time in professional career, we are in race. हमारे अंदर जेलसी आ जाते हैं, हमारे अंदर एस्पायरेशन बहुत हाई है आज की तारीख में. स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है. एंड स्ट्रेस लेवल शुरू होता है 5th 6th के बच्चों से ही. वहाँ पे एजुकेशन का स्ट्रेस हो या दिखावे की स्ट्रेस हो या कितनी बड़ी गाड़ी है घर में उसकी स्ट्रेस हो, यहाँ से लेके जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तब स्ट्रेस अलग तरीके से आते हैं और पाइल अप होते जाते हैं. सो व्हाट इज योर वे एंड प्रोसेस? I cannot say that कि stress आप हटा दोगे, not possible maybe. Of course not but possible. how to manage the stress so that it should not impact your personal life? Because I personally believe that if you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. And once you lose your character, you lose everything. Yes, very true. So now how you handle that? Because HR profession itself is a stressful profession. It is. Because you also don't know what I will be facing today when Definitely. I will be reaching and I will be walking to my office. Definitely. If you talk about stress, I'll give you a small example. When you work with a startup, when you are the only HR in the organization, and if the startup is in, you can say they work round the clock, okay, then you are responsible to answer the call at the 2 a.m. in the night also if you get it. Yes. That's what role I have played. So you can imagine the stress that I've gone through. And that too when I was about to be a mother. Wow. And yes. And my funda was only to relieve the stress was to handle the thing politely. सामने वाला already गर्म है. Exactly. That's the right approach maybe. सामने वाला already गर्म है, आप गर्म होके कुछ नहीं कर पाओगे. आप जितना कंसोल कर लोगे उसको उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. प्रॉब्लम नहीं जाएगी उससे. मैं ये नहीं बोल रही कि आप पोलाइट होकर प्रॉब्लम खत्म कर दोगे, नहीं, प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वो रूट कॉज रहेगा. बट पोलाइटली आप जितना अच्छे से उस चीजों को हैंडल कर सकते हो, आपके दिमाग खुल जाता है कि आप इस चीज में अच्छा ऐसा भी कर सकती हूँ मैं, अच्छा मैं ये सोल्यूशन करके दे सकती हूँ, शायद ये शांत हो जाए,
ये मेरे आउट ऑफ द वे जाके एक काम करने से अगर इसका अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं वो करूँ. सो एक वो चीज है. दूसरी चीज आती है कंपैरिजन. इट इज नॉट विद 5th स्टैंडर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर फ्रेंड. इट स्टार्ट्स विद द डे किड इज बॉर्न, राइट? वी मदर्स, or you can say the, like, the circle around us, we start comparing. उसके पास अच्छे कपड़े हैं, या let's say एक बॉटल है, मिल्क बॉटल है, वो बॉटल की क्वालिटी, बॉटल क्वालिटी, then we start comparing. We as a parent, we itself are born, like, हमारे दिमाग में भरा हुआ कि हम बच्चे को पहले ही सिखाएं, नहीं उससे अच्छा होना है. क्यों होना है भाई? let them be the one they are. Yes, true. इसी बात पे मैं थोड़ा सा ना, मतलब मेरे फादर की आदत थी, अभी भी है इनफैक्ट उनकी. मैं जब छोटी होती थी, आई वॉज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड. आई वॉज लाइक, मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी. आई वॉज बॉर्न, पीपल आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, आई वॉज बॉर्न विद डायमंड स्पून. आई वॉज बॉर्न इन सो रिच फैमिली, सो वेल्दी फैमिली, एंड द ओनली गर्ल इन द फैमिली. ब्रदर्स थे मेरे कजन्स, आई वॉज द ओनली गर्ल इन द फैमिली फॉर दैट पर्टिकुलर फेज. मेरा भाई मुझसे काफी छोटा है, मुझसे 10 साल छोटा. तो पेरेंट्स की काफी लाडली भी रही हूँ, लाडली बट बिगड़ी हुई नहीं, लाडली रही हूँ बिल्कुल. माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज स्टिल स्ट्रिक्ट. आई कैन नॉट डेयर टू वेयर, एंड लाइक अगर जैसे मेरी मम्मा को, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन द सोसाइटी, मेरे को सिर्फ एक टैटू करवाना था आफ्टर मैरिज. मेरा बहुत मन था एक टैटू करवाने का. मम्मा सेड इन्फेक्शन 10 हो जाते हैं, निडल्स घुसेंगी, ना जाने कहाँ की निडल्स होती है. तो वो आज मेरी शादी को शायद 8 साल हो जाएंगे, मैंने अभी तक नहीं करवाया. So we were that disciplined कि हम मम्मी की आंख से डरते थे. अगर हम वहाँ, मतलब मम्मी है, मम्मी घूर के देख ले तो हमारी मजाल होती थी कि हम वहां से हिल जाएं बिल्कुल. मतलब ये एक डिसिप्लिन हम लोग फॉलो करते थे. सो मेरे डैड की आदत थी कि जब माय डैड वाज इनिशियली बिजनेसमैन, सो जब घर आते थे खाना वाना खाने के बाद रूम में, जैसे हम लोग आए, आजकल होता है कि रूम्स बेबी के अलग होते हैं, पेरेंट्स के अलग होते हैं, बट वी यूज्ड टू को स्लीप विद आवर पेरेंट्स. सो आई फॉलो द सेम ट्रेंड, माय किड इज स्लीपिंग विद अस ओनली. सो उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर्स होते थे, टेप होते थे इतने बड़े, फिलिप्स का एक टेप होता था डैड का, बहुत सारी कैसेट्स की पूरी कलेक्शन था. कभी मन्ना डे चला देते थे रात को, कभी मोहम्मद रफी चल रहा होता था, कभी मतलब ऐसी. तो मुझे आज भी कोई गाना पुराना बज रहा और मैं गाती हूँ साथ में, तो माय फैमिली, मतलब मेरे इन-लॉज फैमिली से पलट के देखती है कि इसको इतने पुराने गाने भी आते हैं. बिकॉज डैड रात को वो प्ले करते थे और मैं वही सुनते सुनते सोते थे. मतलब ऑटोमेटिकली उस टाइम पे क्या होता था, टेप चलते चलते ऑटोमेटिकली पॉज बंद होता था, कट ऑफ ऑटोमेटिक होता था. जब तक आप साइड उठ के कैसेट पलटो नहीं तब तक नहीं होता था. तो मुझे वो गाने याद हैं. तो एक गाना उसमें से जो है मेरा फेवरेट है, जिसको मैं ये स्ट्रेस जिससे मैं रिलीज करती हूँ और कंपैरिजन को खत्म करने की कोशिश करती हूँ, वो आपने भी शायद सुना हो कहीं ना कहीं. वो गाना मैं आपको 2 मिनट याद करके बताती हूँ. वो गाना है कि उसमें एक ऐसी लाइन है उस गाने में कि आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, कि कंपैरिजन करने से बेटर है कि आप अपने आप को देख लो, जो मिला है उसमें खुश हो जाओ. गाने के वर्ड्स याद करती हूँ मैं. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. उसमें एक लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी वो लाइन. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले ने एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. तो द टाइम व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग वो चीज को, लाइक कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व. ऑफ कोर्स हमारी ड्यूटी बनती है, हम जो डिजर्व कर रहे हैं उसको गोल तक दौड़ने की. इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से कंपैरिजन करने लगे. दूसरा अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आप अपनी लड़ाई लड़िए. बिकॉज स्ट्रगलिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैं अपने हस्बैंड को कई बार कहती हूँ कि देखना, एक दिन तुमको ऑफिस से ही फोन आएगा. सो हम लोग कभी बैठते हैं साथ में कि रिटायरमेंट प्लान क्या है, क्या करेंगे. सो मेरा रिटायरमेंट प्लान यही है कि तुम्हें ऑफिस से फोन आएगा कि एनी इज नो मोर, प्लीज अब आ जाओ और ले जाओ. सो इट इज समथिंग व्हाट आई हैव थॉट कि मुझे इस तरीके से इस दुनिया से जाना है, कि ऐसे नहीं है कि मैं रिटायर होके बैठ के मैं भी अब एक लैविश लाइफ नहीं जी सकती, बट नो, आई चूज टू बी इन द सोसाइटी, टू डू समथिंग फॉर ह्यूमन काइंड. एंड मेरे गोल्स हैं कि मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम प्लस एक ऑर्फनेज ओपन करूं, जिसमें से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि दोनों बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे, माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे.
सो अगर वो मैं अगर साथ में मेरा एक सपना है कि अगर मैं ये चीज को फ्रूटफुल समहाउ करना चाहती हूँ, मैं उसी के लिए वर्क अराउंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बहुत, इंडस्ट्री में भी देख लो आप, हमारे यू कैन से मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, उसमें से स्ट्रेस का लेवल यू कैन से 90% आजकल बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को भी है कि हमें अपने बच्चों की नीड्स फुलफिल करनी है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं हर चीज के, इनकम नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी है। सो जहां हम वो कंपैरिजन करना बंद कर देंगे, हम फ्री हैं। मतलब लाइक आज मुझसे किसी कोई पूछ रहा था कि आप क्या चाहते हो आपकी बेबी के बारे में, कि वो क्या बने। मैंने कहा मैं क्यों खुद चाहूंगी, वो खुद बनेगा जो बनेगा। फिर भी मेरा ये सपना है, मैं उसको हर चीज से फ्री करके, कोई कम कंपटीशन नहीं, उसको जितना पढ़ना है वो पढ़ेगा। कोई, मेरे पेरेंट्स ने भी यही रखा है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि आपको अव्वल ही आना है, आप आए हो ना कोई बात नहीं, जो आ गया जैसा हो गया पेपर, अब आके रोने से कुछ नहीं होना, पेपर नहीं बदलेगा आपका, आप तो लिख कर आ गए हो। सो कभी हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमें कंपटीशन में दौड़ाया नहीं कि आप दौड़ो, सही चीज सिखाए कि आप ये चीज सही करो, अपने आप आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। मेरा भी वही सपना है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो वो फ्री बर्ड की तरह जिए, उसको बाइकिंग जाना है बाइकिंग जाए, जो करना है करे, इट्स ऑल फॉर हिम। लाइक वी बोथ एज अ पार्टनर्स, एज अ पेरेंट्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हिज फ्यूचर, कि हम इतना कर लें उसके लिए कि उसको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि वो फ्री रहे, कोई बर्डन नहीं हो उस पर। आज नहीं तो अगर आप देखें हमारे जो पेरेंट्स ने जो लाइक यू नो जनरेशनल गैप जो जिसको कहते हैं देखा है, उन्होंने ये देखा है कि पेरेंट्स अपना लाइक लोड शेड ऑफ करते हैं अपने जनरेशन, आगे वाली जनरेशन पे। सो वो चीज आजकल की जनरेशन नहीं चाहती, वो खुद जीना चाहती है, दूसरों को भी जीने देना चाहती है, विदाउट लोड जीना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एंड इसीलिए आजकल के बच्चों के जो गोल्स, आप यूथ की बात कर रहे हैं ना, उनके गोल सेट है कि हम 35-37 पे रिटायर हो जाएंगे, हमें हमारी लाइफ आगे जीनी, क्योंकि वो लोड लेके नहीं जीना चाहते। सो इट्स बेटर टू स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, लिव एंड लेट लिव। That's true. You are dealing with HR, human resource, Yes. and you are giving employment, and you are kicking out as well, right? Now, my point is that in today's educational system, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा commercialized है और जहाँ पे हर चीज़ को जॉब के साथ जुड़ा जाता है, yes. तो आप कहीं भी स्किलफुल की या प्रोफेशनल कोर्स के बारे में देखेंगे, नीचे टैगलाइन जरूर होता है कि 100% जॉब, Placement guaranteed. Yes. So, how much gimmick it is you find in your personal experience? See, it is, I cannot say it's a gimmick, but yes, it is tricky. Okay. जॉब आज सबको मिल जाती है, जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब सबको मिल जाती है, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि आपने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स सोच के रखे हैं जॉब के लिए। इफ यू हैव थॉट ऑलवेज कि मेरे को तो भाई जैसे लाइक यू नो 10 lakhs की ही जॉब से ही स्टार्ट करूंगा, 10 lakhs की जॉब से स्टार्ट करने वाले लिमिटेड लोग होते हैं, 2 lakhs 4 lakhs से स्टार्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 4 लाख वाला 10 लाख नहीं कमाएगा। इट वाज डेफिनेटली प्लेसमेंट की हर किसी को इच्छा होती है। आज कोई भी बच्चा कहीं भी करने जाएगा, ट्रेनिंग के लिए जाएगा, इंस्टीट्यूट में जाएगा, वो यही सोच के जाएगा कि मेरे को ये गोल लेके चलना है, वो गोल सेट करके जाते हैं। कईयों का गोल जॉब होता है, कईयों का गोल बिजनेस होता है, कईयों का गोल कुछ नहीं होता कि सिर्फ पढ़ना है, यार डिग्री के लिए पढ़ना है, इतना है पैसा कि नहीं हमें कुछ करना, कर लेंगे हमें जो करना है। सो एंड जो ये गिमिक खेल आप जो बोल रहे हैं, जो अपना प्लेसमेंट का खेल चलता है, उसमें अगर हमारा प्लेसमेंट नहीं भी हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर टू वर्क टुवर्ड्स इट, यू विल डेफिनेटली गेट इट, क्योंकि अब मार्केट ही ऐसा है। अब आप खुद सोचिए, जो लास्ट ईयर के यू कैन से जैसे पिलानी के बच्चे हैं, और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बच्चे वो हुए हैं, पास आउट हुए हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है बिकॉज रिसेशन है मार्केट में। एंड व्हेन देयर इज अ रिसेशन, यू नो कंपनीज कैसे उठा के लेके जाती है, मार्केट ट्रेंड क्या चलता है, बड़ी बड़ी कंपनी से कितने लोगों को फायर किया, एंड वो फायरिंग का जो गेम है वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम न्यू यूथ को उसे हाफ से कम कॉस्ट में रख सके। यस, नाउ माय सेकंड पॉइंट इनटू इट कि ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में जहां पे ये 100% जॉब गारंटी बताया जाता है, कभी अगर आपको वहां पे एज ए प्लेसमेंट के लिए जाना पड़े, तो हाउ मच परसेंटेज यू एक्चुअली गेट, हु इज द क्वालिटी दैट यू वांट टू हायर इवन? That is the bitter truth of the industry. We only get 10%.
only 10% and we take 2%. We take along with us 2%. It is Means a that bit different. 98% needs to suffer or needs to improve on themselves. Yes. to This is I'm again talking come to about 2%. Yes, this is I'm talking about the mid-level company. Yes, yes. And for the MNCs, And their maximum chunk is there only. yes. And the MNCs, they take maybe 10%. My God. And that too, after 6-7 rounds of interviews, it is like 4 rounds of bare minimum hote hi hain. It's a big demotivating also sometimes for the youth. That is why they run towards self-placement. And by the help of your platform, I just want to convey a message. If anyone is struggling with a job, they can connect with me. I'm available. You can pass on my number to them. I'm available. I'll definitely be more than happy to get them placed. I'll try my 100% to get them placed in my local network. That's really great. Now I want to ask you one single personal thing. You achieved many awards as of now, and I wish कि ये तो सिलसिला चलता ही रहे. I also wish for the same. Fingers are crossed. My point is that what was that moment when your parents truly found that you achieved somewhere and you achieved where they wanted to see you? What was that moment first? See, for my parents, definitely parents के मुंह से तारीफ सुनना बहुत बड़ी चीज होती है. आज being हर फादर की इच्छा होती है कि उनको उनके बच्चों के नाम से जाना जाए. There was a time when I went to a place where, of course, मैं मतलब being from a joint family, थोड़ा सा women's को मतलब ये होता है कि हम प्रोटेक्ट करके रखें बच्चे, क्योंकि सुंदर भी हैं. तो हम जमाना देख रहे थे कि लोग कैसे लड़कियां भाग जाती हैं, बिगड़ जाती हैं. उस टाइम पे चलता था ये. आजकल बहुत ओपन है. हमारे टाइम पे मुझे आज भी याद है, कई बार मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पापा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते थे और मेरे को अशेम फील होता था कि पापा और किसी के पापा तो नहीं आते, आप क्यों छोड़ने आ रहे हो मुझे? मैं कुछ थोड़ी कर रही हूँ, गलत थोड़ी कर रही हूँ, मैं स्कूल ही जा रही हूँ ना, मैं कुछ. तो कई बार ऐसा होता था कि माई डैड ऑलवेज यूज्ड टू कीप अ कंट्रोल ऑन मी. सो आज कहीं ना कहीं वो कंट्रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कम से कम उस लेवल पे नहीं गई हूँ जहां मैं, हो सकता है मैं पूना में थी, मैं बहुत फ्री बर्ड थी, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा था, मैं आउट ऑफ द वे जाके अपनी चीजें लाइफ एंजॉय कर सकती थी. मैं हो सकता है वापस भी नहीं आती इंदौर कभी. बट समहाउ बीइंग अ फैमिली ओरिएंटेड पेरेंट्स ने मुझे रूट्स बांध के रखे थे. अपने कभी भी एक ह्यूमन को अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए. जहां आप रूटेड रहोगे वहां आप ग्रो करोगे. सो वो प्राउड मोमेंट जब मैं एक बार कहीं गई मार्केट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में गई, तो ऐसे छोटा सा गैदरिंग हो रहा था, पापा के नोन के गैदरिंग था. वहां पर 3-4 लोग आए जो मुझे जानते थे और मेरे पापा को ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में काफी मतलब पता चल जाता है कौन किसका फादर है. जो क्लोज नेटवर्क में उनको तो इजीली पता होगा कि उनके फादर है. तो वहां पर और वो भी काफी सीनियर प्रोफाइल पे थे, ऐसा भी नहीं डायरेक्टर लेवल के प्रोफाइल पे थे वो लोग जिनके पास मैं गई. सो माई डैड, कोई आया डैड के पास, डैड को नमस्ते किया, कहते हैं आप भाटिया मैम के फादर है ना. सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन, और मेरे को डैड ने उस टाइम नहीं बताया. मैं घर आई, मुझे घर आके मतलब पापा ने बताया कि मम्मी को बोल रहे थे, मैंने सुना. उस टाइम मुझे क्लियर नहीं बोला पापा ने, मैंने सुना. कहते हैं कि आज एनी के कोई नेटवर्क का आया था, मतलब कोई पहचान का था, मुझे कहता है भाटिया मैम के फादर है ना. कहते हैं कि बच्चों ने इतना नाम किया है कि मेरे को लोग बच्चों के नाम से जान रहे हैं. मुझे इससे बड़ा और कुछ अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए. सी, getting born in a rich family is something different, but struggling is something different. And taking your own name, identity is, yes, it is something different. True. So same way, मतलब मेरे in-laws साइड में भी जब मुझे ये अवार्ड मिल रहे थे तो मेरी आदत नहीं है कि मैं शो ऑफ करूं. मैं ठीक है अपने लिंक्डइन नेटवर्क पे करती थी, जिससे फैमिली बहुत दूर रहती है. लिंक्डइन नेटवर्क पे फैमिली का कोई काम नहीं होता. सो वन फाइन डे माय डैड गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. मेरे बड़े पापा, लाइक तरुण, मेरे हस्बैंड के बड़े फादर आए, बड़े पापा आए, अंकल आए. वो कहते हैं कि आप मैं कहीं गया हुआ था, तो मेरे पापा को बोल रहे थे मैं कहीं गया हुआ था, तब मुझे एनी की किसी ने एनी के बारे में आके बोला कि आपकी इनको तो इतने अवार्ड्स मिले, आपको पता भी है कि नहीं. तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता. कहते मतलब हमारे घर में ऐसी लड़की आई है, हमारे घर में बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है, सब इतने पढ़े लिखे हैं, बट जो नाम एनी ने किया है हमारा, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर की कोई भी बच्चा ऐसे नाम
मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट एक चीज अपने बारे में ये चीज सुनना बहुत एक अचीवमेंट है कि यार आपने बहुत पब्लिसिटी नहीं करी, कुछ नहीं है, बट स्टिल यू गेट दैट फेम, यू गेट दैट लव इन द फैमिली, दैट मेक्स यू मोर, यू नो, मुझे बहुत भूख देती है और कि मैं और आगे बढ़ूं और इनका नाम करूं। आई रिमेम्बर एक अवार्ड मुझे मिला था भोपाल में, आई राइज वुमेन का अवार्ड, जो मैं अभी आपको बता रही थी। उस अवार्ड को लेके जब मैं घर आई ना, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को अवार्ड दिया। मैंने कहा आज आप हो और मेरी मम्मा है जो मेरे को बैकअप कर देती है, बिकॉज मैं घर छोड़ के जाती हूँ, बिकॉज मैं मदर इन लॉ है, मैं सेटिस्फाइड होकर जा सकती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ है, वो घर देख लेंगे। मैंने कहा, और कई बार होता भी है, हम लोग ऑफिस से लेट आ रहे हैं, कहीं नहीं ध्यान नहीं है, बट हम लोग को खाना मिल जाता है, मदर इन लॉ हर चीज देख लेती है, तो कहीं ना कहीं ये अवार्ड आप लोग को ही जाता है कि आप लोग एक विमेन को बढ़ाती है, तब जाके आज इस लेवल पे हम पहुंच पाते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू फाइट। उन्होंने अपनी एक लड़ाई लड़ी होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरे बच्चे ये लड़ाई ना लड़े। राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने के लिए पीछे स्ट्रगल जुड़ा होता है, तो आप जाके इस फेज पे आके पहुंच पाते हो। एंड जो मेरा वो एंगर फ्री जोन रखने का जो सपना है एक ऑफिस को, वो इसीलिए है कि आपको नहीं पता कि एक एम्प्लॉय किस कंडीशन में आपके ऑफिस में आ रहा है, किस मेंटालिटी से ऑफिस आ रहा है। हमारा टाइम होता था जब हम मजबूरियों के लिए जॉब करते थे। मैंने मजबूरी के लिए कमाना शुरू किया था, बिकॉज आई हैड सर्टेन क्राइसिस व्हिच नीड्स माय अटेंशन एनी हाउ, और मैं नहीं करती तो आज मुझे नहीं पता कि क्या चीजें शायद अलग ही होती, हो सकता है इससे अच्छी होती, हो सकता है इससे बुरी होती। ट्रू। बट वो स्ट्रगल मैंने किया, तो आज जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। बट आजकल की जनरेशन, हो सकता है उनको स्ट्रगल उनका कम होगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत प्लान करके चलने लग गए हैं बच्चों के लिए चीजें, बट स्ट्रगल वो भी करते हैं कहीं ना कहीं, कंपटीशन का स्ट्रगल, और वो कंपटीशन हम पेरेंट्स ही देते हैं उनको। हमारी जनरेशन ने ही कहीं ना कहीं गोल सेट करके रखे होंगे जो उनको फेस करना पड़ रहा है आजकल। आपने वो पिक्चर भी देखी है शायद, 3 इडियट्स, जिसमें कि उनके घर में एसी लगा है, एक एसी है तो वो तुम्हारे कमरे में लगवाया है, उनका बेटा ये कर रहा है, उनका बेटा वो कर रहा है। सो ये जो एक सोसाइटी में जो चल रहा है, इसकी वजह से ही, कंपटीशन की वजह से ही बच्चों को ये लगता है कि नहीं, आज हमारे पास इतना पैसा हो तो हम ये चीज कर सकें, इसीलिए वो रैंडम ग्रोथ करते हैं, रैंडम स्विचेस करते हैं। बट समहाउ वो ये नहीं समझ रहे कि अभी तो ठीक है, अभी तो तुम्हारा यूथ पीरियड चल रहा है, जहां आप 30+ हो गए, जहां आपकी जॉब स्टेबिलिटी, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगेंगी, बड़ी कंपनीज या कोई भी कंपनी आपकी स्टेबिलिटी को देख के आपको रखना भी प्रेफर नहीं करेगी। क्योंकि हमारे पास अगर कोई रिज्यूमे आता है, हम सबसे पहले देखते हैं कितना स्टेबल है। क्योंकि ये बात होती है ना कि कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि हम एक अनस्टेबल पर्सन को रखें। हम लॉन्ग टर्म, कभी भी आप किसी को जॉब के लिए रखोगे, ये नहीं सोचोगे कि उसको 2 महीने में निकाल देना है, यही सोचोगे कि ये हमारा कितना फ्रूटफुल, हम कितना अच्छे से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। creation in terms of human, actual that is the reason of human resource as a department. Yes. Even eventually, जब तक एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी को अपना समझ के काम नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए थोड़े टाइम के लिए काम करके ही जा सकता है। Thank you very much for giving us so much of time, and it was a very insightful discussion. Same here. Like, I always would like to, be associated with you. Whenever you are there, whenever you call me, I'll be there for you to help. And yes, out of the industry के बाहर भी, whenever you need any help, I'm always there. As I told you that I'm very much towards into mankind, humanity. So I'll definitely, कोई गुड कॉज हो, आप मुझे रीच आउट करना, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट। मी एंड माई फैटर्निटी, like I have many people associated with me who would like to bring up more and more, give more and more to the society, because this society has also given us many things. And that was the reason actually I was wanting to cover you, so that people should understand that there are hopes and there are people who are ready to help you there. Always. So you just need to have that right person and right contact through which you can excel in your life as well. True. So again, thank you very much for coming, and thank you very much for this much of time. Thank you so and much. please share your experience. How it was literally wonderful. You are doing something very good. Connecting with people, listening their stories and providing the stories to the market so that people can get motivated. See, शिव खेड़ा, इन सबको हर किसी ने पढ़ा है, बट जो रियल टाइम चैलेंजेस हैं, जो एक लोकल मार्केट में लोकल बंदा फेस करता है, बंदी फेस करते हैं, पीपल फेस करते हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाना है। समथिंग विच इज डूइंग समथिंग टुवर्ड्स द ह्यूमन काइंड। आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, इससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, ऑफ कोर्स, बट हमारे जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, वो सामने वाले को हो सकता है बेनिफिट या मोटिवेट ही कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। True, very true. बेनिफिट तो ठीक है, बट मोटिवेट ही कर ले तो वो ही कितना बड़ा अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होगा कि
like बहुत ज़्यादा ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल भी होगा. एंड आई विश यू many more year of success, many more success to you, so that you can bring up more such stories to enlighten the people, bring them energy so that they can reach you out and you grow. Thank you so much. Thank you very much, man. Thank you. So this was the podcast with Annie Bhatia, and in this podcast we tried to understand more about the importance of the HR department and how much HR is helping in creating the right atmosphere and creating the compliance and integrity for every entrepreneurs and startups. And please comment in our comment section about what kind of content you want to watch, और हमें प्लीज ये भी सजेस्ट करें कि आप किस टाइप का गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट में चाहते हैं. And also subscribe our channel so that you can have all the updates from our end, and also visit our website www.tsbp.in. From our website you can pitch your business idea so that your business idea will be visible to the globe or to the larger number of audience. और इसके थ्रू हो सकता है आपको एक राइट एडवाइजरी भी मिले एंड आपका बिजनेस मॉडल को और रोबस्ट बनाने के लिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं. So please visit our website www.tsbp.in. And thank you very much for watching the podcast and signing it off.